ناول ملال باب نمبر 5 ملاپ۔ کس سے پوچھ کر آپ نے میرا رشتہ طے کیا ہے؟ منہا نے غصہ ضبط کرتے ہوئے آرام سے پوچھا۔ میں اس خاندان کی بڑی ہوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بی جان نے روپ دار لہجے میں جواب دیا تھا۔ باقی سب خاموش تھے مگر منہا خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ میری زندگی کا فیصلہ میری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس نے صاف الفاظ میں انکار کیا تھا۔ آخر کیوں نہیں کرنی تمہیں شادی؟ عمر دیکھو اپنی، اگلے ہفتے تم پورے 29 کی ہو جاؤ گی، کب تک گھر بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ بی جان اس پر برسی تھی۔ منہا کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی، خاندان کا ہر بندہ بس اس سے یہی سوال کرتا تھا۔ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہوں، کسی اور کے گھر میں نہیں، لیکن اگر آپ کو میری اتنی ہی فکر ہے تو میں جلد شادی کر لوں گی، مگر اپنی مرضی کے انسان کے ساتھ۔ آپ مجھے اور ہمایوں کو زبردستی کے رشتے میں نہیں باندھ سکتی۔ وہ بہت آرام سے بات کر رہی تھی۔ بی جان اس کو عزیز تھیں مگر اپنے حق کے لیے بولنا اس کا فرض تھا۔ منہا کا یہ جواب سن کر ہمایوں کو لگا کہ کسی نے اس کا دل نکال کر باہر رکھ دیا ہو۔ منہا کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہمایوں میرا بیٹا ہے، اس سے میرے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں، تم اپنی بات کرو۔ آخر ہمایوں میں کیا کمی ہے؟ تم دونوں بچپن سے ساتھ ہو، ایک دوسرے کو جانتے ہو، اتنے اچھے دوست ہو۔ بی جان کو منہا کا انکار برا لگا تھا۔ بی جان بات کمی کی نہیں ہے، ہمایوں بہت اچھا ہے، مگر میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا۔ ہاں ہم اچھے دوست ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اچھے لائف پارٹنرز بھی بن سکتے ہیں۔ شادی کوئی عام بات نہیں ہے، پوری زندگی کا ساتھ ہے، اور میں اپنا لائف پارٹنر بہت سوچ سمجھ کر چنوں گی۔ وہ بی جان کے فیصلے سے بار بار انکار کر رہی تھی، اور یہ سب ان کو غصہ دلوانے کے لیے کافی تھا۔ تم ہم سب پر بوجھ بنتی جا رہی ہو منہا، اسی لیے میں کہتی تھی کہ لڑکیوں کو اتنا مت پڑھاؤ۔ دیکھا، ابھی ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچ رہی ہیں۔ آخر کون تم سے شادی کرے گا اس عمر میں؟ کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ لڑکی کی کم عمری ہوتی ہے۔ تمہاری عمر میں تو ہمارے 6 بچے ہوتے تھے۔ یہ تو تم میرا اور ہمایوں کا احسان مانو کہ تمہارا رشتہ مانگ لیا، ورنہ تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آنے والا۔ بی جان آج بھی پچھلے زمانے میں جی رہی تھی، جہاں 16 سال کی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ بی جان کی ان باتوں نے سونیا بیگم کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہیں۔ ہمایوں سے یہ سب روکنا چاہتا تھا، مگر نہ وہ منہا کو کچھ کہہ سکتا تھا نہ بی جان کو۔ منہا کو یہ باتیں تیر کی طرح چبھی تھیں، اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ میرے لیے رشتے آئیں، نہ ہی میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو ساری زندگی بس ایک شہزادے کا انتظار کرتی ہیں۔ میں اپنا اچھا برا اچھے سے سمجھتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بی جان اس وقت غصے کے مارے لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ اور رہی بات احسان کی، تو آپ اپنے پوتے کا رشتہ اپنے پاس ہی رکھیں، ایسے ڈھیر رشتے میں کئی سالوں سے ریجیکٹ کرتی آ رہی ہوں۔ وہ دو ٹوک بات کرتی آئی تھی۔ اب میں اس گھر میں 1 منٹ نہیں رک سکتی ہمایوں، چلو ادھر سے۔ بی جان غصے میں اٹھ کر باہر کی طرف نکلی تھی۔ ہمایوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ سونیا بیگم افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بی جان کو روکنے کے لیے پیچھے بھاگی۔ ہمایوں نے منہا کو ایک نظر دیکھا، منہا نے نگاہیں نیچے کر لی تھی۔ ہمایوں کے لیے وہ سب بول کر اسے برا لگ رہا تھا۔ پھر ہمایوں بھی باہر کی طرف لپکا۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ آپ کی وجہ سے میری بھی شادی کی عمر نکل جائے؟ ساتھ بیٹھی نور ایک دم سرد لہجے میں بولی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کو اکیلے رہ کر عیاشی کرنے کا موقع مل رہا ہے، جو شادی کے بعد آپ سے چھین لیا جائے گا۔ بی جان نے صحیح بولا ہے کہ آپ ہم سب پر بوجھ ہیں۔ وہ بکواس کیے جا رہی تھی اور منہا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نور ہے جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ ان کے باپ کے انتقال کے بعد اس نے نور کا باپ بھائی بن کر اس کی حفاظت کی تھی، اسے پڑھایا لکھایا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو نور، اس سے پہلے میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ وہ اپنے بہت سے جذبات قابو کیے بیٹھی تھی۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہی، پورا خاندان آپ کے بارے میں یہی کہتا ہے۔ جاب تو بس ایک بہانہ ہے، اصل میں تو آپ کو باہر جا کر رنگرلیاں منانے کا موقع مل رہا ہے، پھر آپ شادی کیوں ہی کریں گی؟ اور یہ سن کر منہا کا ہاتھ نور پر اٹھا تھا۔ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہے، اس کی اپنی بہن۔ نور اپنے منہ پر تھپڑ کھانے کے بعد غصے سے منہا کو دیکھ رہی تھی۔ منہا کو افسوس تھا کہ اس نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا، مگر نور نے بات ہی ایسی کی تھی جو ناقابل برداشت تھی۔ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اور صرف آپ کی وجہ سے 2 سالوں سے میں اسے ٹال رہی ہوں، لیکن اب اور نہیں۔ وہ کچھ دنوں میں پاکستان سے باہر جا رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا اور اس کا نکاح کر دیا جائے۔ منہا کو اصل بات اب سمجھ آئی تھی۔ امی سے آپ بات خود کریں گی، اسی ہفتے میرا نکاح کروائیں ورنہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، اور اس کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گی۔ وہ غصے میں اپنی آخری فیصلہ سناتے ہوئے باہر نکلی، اور منہا ادھر کافی دیر تک بیٹھی سوچتی رہی۔ کیا یہ تھا اس کی قربانیوں، اس کی محنت کا بدلہ؟ یہ باتیں اگر کسی اور نے بولی ہوتی تو اسے فرق بھی نہیں پڑتا، مگر اپنی سگی بہن کے منہ سے یہ سب سننا اس سے اندر سے کھا گیا تھا۔ براق نے دھکا مار کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔
अंदर बिल्कुल खामोशी थी। वो एक हाथ में गन लिए जुनून में पागल आगे बढ़ रहा था। कुछ कदम आगे चलने के बाद टीवी लाउंज में पहुंचा। जैसे उसने सोचा था, सामने का मंजर उसके बिल्कुल बरक्स था। उसके हाथ से गन उधर ही गिर गई थी। शानजे सोफे पर सीधी लेटी थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। बुराक ने उसके हाथ में एक पर्ची देखी। वो आगे बढ़कर उसके हाथ की तरफ झुका और वो पर्ची शानजे के हाथ से लेने की कोशिश की। शानजे के दूसरे हाथ ने कुछ हरकत की थी। वो अपने नीचे एक चाकू दबाए बैठी थी। उसने अपने दूसरे हाथ में चाकू मजबूती से पकड़ा और बुर्राक के कमरे में मारने की कोशिश की। बुर्राक ये हरकत महसूस कर चुका था। उसने अपना दूसरा हाथ पीछे की तरफ मोड़कर चाकू पकड़ा। चाकू उसकी कमर से बस 2 उंगलियां दूर था। बुर्राक ने उसकी तरफ देखा। शानजे भी अपनी आंखें खोल चुकी थी। वो अपना पूरा जोर लगाते हुए चाकू अंदर की तरफ धकेल रही थी और बुर्राक ने चाकू मजबूती से थाम रखा था। प्लान बहुत अच्छा था, मगर मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। वो उसे चढ़ा रहा था। तुम भी अपनी दोस्त की तरह ही मरोगे। ये कहते हुए उसने चाकू अपनी पूरी कुव्वत के साथ अंदर करने की कोशिश की। इस बार बुराक चाकू छोड़ चुका था। चाकू अंदर की तरफ आ रहा था और वो उसके नीचे से निकल गया था। चाकू सीधा सोफे में घुसा था। शानजा सोफे से उठ खड़ी हुई। वो और बुराक एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उसने सोफे में से चाकू निकाला। बुराक के हाथ खाली थे। उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। शानजा चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ी थी। उसने बुराक के पेट का निशाना लिया था। बुराक ने शानजे का चाकू वाला हाथ पकड़ा और उसे घुमाया। अब वो बुराक की तरफ कमर के बल खड़ी थी। शानजे के लिए यह सब बहुत अचानक था। बुराक ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत कर ली थी। फिर शानजे का हाथ पकड़कर उसी की गर्दन पर रखा। शानजे चाकू को बाहर की तरफ खींच रही थी और बुराक उसे पकड़े खड़ा था। वो अपनी ही जान में फंस गई थी। जानती हूँ मुझ में और मुराद में क्या फ़र्क है। उसका दिल नर्म था, मेरा नहीं। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है और तुम्हें मारते हुए मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं होगा। वो सर्द लहजे में बोला। और जानते हो मर्द और औरत में क्या फ़र्क है। जब एक औरत बदला लेती है तो शैतान भी पनाह मांगता है। इसलिए तुम्हें एक ऐसी औरत के शर से डरना चाहिए जो इंतकाम की आग में जल रही है। शानजे ने अपना सांस बहाल करते हुए बोली थी। बुराक ने अपनी गिरफ्त और मजबूत की। शानजे को अपनी हार तस्लीम नहीं करना थी। उसने बुराक की टांगों के बीच में लात मारी। बुराक एकदम नीचे की तरफ झुका। उसे काफी दर्द हो रहा था और शानजे ने इसी बात का फायदा उठाते हुए चाकू बुराक की तरफ तेजी से मारने की कोशिश की। लायला ने जीन्स और उस पर खुला सा स्वेटर पहन रखा था। शीला उसे मोहतशिम के कमरे में धकेल रही थी और लायला उसे आराम से चलने का बोल रही थी। लायला ने दरवाज़ा नॉक करने के बाद कमरे में कदम रखा। मोहतशिम सामने बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। वो लायला के अंदर आते ही उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मोहतशिम उसे इस वक्त देखकर हैरान था। फिर वो उसकी बात सुनकर आगे बढ़ा। शीला, तुम भी अंदर आ जाओ। दरवाजे की दूसरी तरफ से सही से आवाज़ नहीं आएगी। लायला ने अपनी हंसी कंट्रोल की थी। शीला हैरान थी कि आखिर मोहतशिम को कैसे पता चला। वो डरती डरती अंदर घुसी। अब बोलो, क्या बात है। मोहतशिम ने दोनों को देखकर बोला। वो मैं और शीला शॉपिंग करने जाना चाहते हैं। लायला ने सीधी बात की थी और शीला को जवाब का इंतजार था। लेकिन इन दिनों बहुत खतरा है, पुलिस हमें पागलों की तरह ढूंढ रही है। वो दोनों ही मोहतशिम का जवाब जानती थी। आप लड़की नहीं है ना, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी कितनी ज़रूरतें होती हैं। आप लड़कियों को शॉपिंग करने से कैसे रोक सकते हैं जब हर ब्रांड पर सेल लगी हुई है। शीला मुंह बनाकर अपनी ड्रामेबाजी कर रही थी। मेरे ख्याल में तुम दोनों के पास पैसों का ढेर है। तुम लोगों को सेल की क्या ज़रूरत। मोहतशिम अच्छे मूड में था। सेल का अपना मज़ा है। वैसे भी मैंने पिछले 4 महीनों से शॉपिंग नहीं की। शीला जिद कर रही थी। हम कल शॉपिंग पर जा रहे हैं, बाकी पुलिस से बचना मेरा काम है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। लैला मोहतशिम को सिर्फ बता रही थी, इजाज़त की उसे ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम दोनों पकड़ी गई तो बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। तो जो मर्जी हो जाए, हम अपनी गैंग के बारे में कुछ नहीं बताएंगी और कुछ दिनों में ही आप हमारी ज़मानत करवा देंगे। ये प्लान हम 1000 बार चुन चुके हैं। लैला ने उसकी बात खुद मुकम्मल की थी। ठीक है, कल तुम लोग चले जाना, मगर जल्दी वापस आना। वो चोरी कामयाब होने के बाद बहुत अच्छे मूड में रहने लगा था, वरना वो कभी इजाज़त नहीं देता। लायला और शीला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई थी। सोनिया बेगम अपने कमरे में लेटी हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेनहा उनके कमरे में दाखिल हुई थी। उससे देखते ही सोनिया ने अपने आंसू साफ किए। मेनहा को अपनी माँ को ऐसे देखकर दुख हुआ था। वो अपनी माँ के कदमों में आकर बैठी। मैं जानती हूँ मैंने आज बीजान से थोड़ा बदतमीजी कर डाली, मगर अम्मी आप खुद बताएं, क्या मैं शौक से घर बैठी हूँ। वो अपनी माँ को अपने दिल का हाल बताना चाहती थी। 6 साल पहले जब अब्बू का इंतकाल हुआ तो हम बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। तब मैंने अपना एमफिल आधा छोड़कर नौकरी शुरू की। नूर की पढ़ाई, घर का राशन, गैस, बिजली का बिल और दीगर घर के अखराजात मैंने अपने जिम्मे लिए थे। तब किधर थे ये सारे रिश्तेदार जो आज मुझ पर इस तरह के बहतान लगाते हैं।
آج نور کی باتوں نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ اس کی باتیں سن کر سونیا بیگم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ منہا کی آنکھیں بے نم ہوئی تھیں۔ بابا مجھے ہمیشہ اپنا بیٹا کہتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ آپ دونوں میری ذمہ داری ہیں۔ میں آپ دونوں کو یوں چھوڑ کر اپنا گھر کیسے بسا لیتی؟ اس وقت میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے انجوائے کرنے کے بجائے ذمہ داریاں اٹھائی تھیں، اور آج میری اپنی بہن مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں نوکری اپنی عیاشی کی وجہ سے کرتی ہوں۔ آخری بات بولتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے تھے۔ نور نے کہا ایسا؟ وہ ایسا کیسے بول سکتی ہے تمہیں؟ میں اس کی خبر لوں گی اچھے سے۔ آخر وہ ماں تھی اور ماں اپنے بچے کو اچھے سے جانتی ہے۔ چھوڑ دیں، وہ غصے میں بول گئی ہوگی۔ سب یہی بولتے ہیں، نور نے بول دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ تو اپنی کہہ دیتے ہیں، انہیں کیا پتہ سننے والے پر کیا گزرتی ہے۔ منہا، تم جانتی ہو تم اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ انہوں نے تمہیں بالکل اپنے جیسا ہمت اور صبر والا بنایا ہے۔ میں جانتی ہوں آج مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر میرا یقین کرو میں تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی آپ مجھے چھوڑیں اور نور کا سوچیں، ہم پہلے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ منہا یہی بات کرنے یہاں آئی تھی۔ میں تمہاری شادی سے پہلے اس کی شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ لوگ 10 باتیں بنائیں گے۔ سونیا بیگم کو لوگوں کی پرواہ تھی۔ امی، لوگ تو اب بھی باتیں کرتے ہیں، ان کو چھوڑیں، نور کا سوچیں۔ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور کچھ دن میں وہ لڑکا ملک سے چلا جائے گا۔ اس کے جانے سے پہلے ہم دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ منہا نے نور کی بات سونیا کے آگے رکھی تھی۔ یہ سب تم سے نور نے کہا ہے نہ بولنے کو؟ اچھی طرح جانتی ہے وہ کہ میں اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ امی، اس سے پہلے کہ نور کے دن میں میرے خلاف زہر گھلے، آپ اس کی مرضی سے اس کا نکاح کر دیں۔ گھر کا ماحول بلا وجہ خراب ہوگا۔ ویسے بھی پرسوں کو میں نے لڑکے کی فیملی کو بلا لیا ہے۔ آپ ان کے ساتھ مل کر اس ہفتے کا کوئی دن فائنل کر دیں۔ وہ نور کو اور اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے اتنی ساری تیاری کیسے ہوگی ایک ہفتے میں؟ سونیا بیگم کو شادی کی تیاری کی فکر ہوئی تھی۔ میں ہوں نا، سب انتظام کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ بس لڑکے سے مل کر لی کے تسلی کر لیں۔ ویسے تو نور نے مجھے جتنا بتایا ہے سننے میں اچھی فیملی لگ رہی ہے، باقی جو اللہ کو منظور۔ وہ اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ واقعی میں تمہارا دل بہت بڑا ہے، مجھے تم پر فخر ہے منہا، سونیا نے فخری انداز میں بولا تھا۔ شانزہ نے چاقو براق کی طرف تیزی سے مارنے کی کوشش کی۔ براق نے اپنی ٹانگ گھما کر اس کی ٹانگوں پر ماری۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گری۔ براق کھڑا ہوا تھا اور ارد گرد دیکھا، گن وہاں صوفے کے پاس پڑی تھی۔ اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی، تبھی شانزہ نے چاقو سیدھا اس کے پاؤں میں مارا تھا۔ چاقو اس کے لانگ بوٹ میں اندر تک جا چکا تھا۔ اسے درد سے آنکھیں بن گئی تھیں۔ جب شانزہ نے چاقو باہر نکالا تو براق کے بوٹ میں سے خون باہر نکل رہا تھا۔ شانزہ نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور براق کو یوں درد سے کراہتے ہوئے دیکھا۔ وہ درد کو برداشت کر رہا تھا، اس نے ایک چیخ بھی نہیں ماری تھی۔ شانزہ نے براق کو دھکا دے کر صوفے پر گرایا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ خون ابھی تک ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ براق حشام، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ براق خاموش تھا، اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ شانزہ براق کے اوپر چڑھی تھی۔ اس نے چاقو براق کی طرف بڑھایا۔ وہ یکدم وار نہیں کرتی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ چاقو اندر گھساتی تھی تاکہ درد زیادہ ہو۔ یہی وہ براق کے ساتھ کرنے والی تھی۔ اس نے براق کے پیٹ پر چاقو کی نوک رکھ کر اندر گھسانے کی کوشش کی۔ تھوڑا سا چاقو ہی اندر گیا تھا کہ براق کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کی شرٹ پر خون کے داغ پڑ رہے تھے۔ براق کے پاؤں میں پہلے ہی تکلیف ہو رہی تھی اور اب پورا چاقو اس کے اندر جانے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی چہرہ آیا تھا، منہا کا چہرہ۔ کیا یہ ہے موت؟ کیا وہ ایسے مرے گا؟ نہیں، وہ ایسے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ براق نے اچانک سے چاقو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر گھمایا۔ شانزہ جو چاقو کے ساتھ ساتھ خود بھی براق کے قریب ہو رہی تھی، چاقو اب اس کے پیٹ میں تھا۔ کہا تھا نا تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ شانزہ کا منہ حیرت سے کھولا تھا، بازی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ابھی تک جو چاقو براق کے پیٹ کے اندر جا رہا تھا وہ اس کے پیٹ میں گھس گیا تھا۔ براق نے چاقو پورا اس کے اندر دھکیلا تھا اور شانزہ کو چیخ مارنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ براق نے اسے دھکا دیتے خود سے جدا کیا اور وہاں سے اٹھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کھڑکی پوری دیوار میں بنی ہوئی تھی جو کہ اس نے اپنے ہاتھ کی مدد سے کھولی۔ اس کا خون ابھی تک نکل رہا تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی۔ یہی وقت تھا یہاں سے فرار ہونے کا۔ شانزہ کے اندر نفرت اور انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے چاقو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ اس کی کچھ سانسیں ابھی باقی تھی۔ قمیص خون میں لت پت تھی مگر اس پرواہ نہیں تھی۔ اگر میں مروں گی تو بچو گے تم بھی نہیں براق حشام، وہ چیخی تھی اور براق جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ زندہ تھی اب تک۔ شانزہ چاقو لے کر براق کی طرف پاگلوں کی طرح بھاگی تھی۔ وہ جب براق کے قریب پہنچی تو وہ سائڈ پر ہوا۔ شانزہ جو اندھا دھند بھاگتی ہوئی آ رہی تھی وہ کھڑکی سے باہر نکلی۔ براق نے کھڑکی میں دیکھا تو شانزہ زمین کی طرف تیزی سے گر رہی تھی اور کچھ ہی لمحوں میں اس کا بدن نیچے زمین پر بے جان پڑا تھا۔ خون پوری روڈ پر پھیل چکا تھا۔
इंतकाम की ये जंग खत्म हुई थी। बुराक लंगड़ाते हुए बाहर की तरफ लपका। फिर उसने महसूस किया कि उसके पांव से निकलने वाले खून की वजह से फर्श पर निशान पड़ रहे हैं। उसने मुराद के कमरे का रुख किया। कमरे में बैठकर उसने अपने जूते उतारे। उसके पांव पर वाज़ेह चाकू का बड़ा सा निशान था। उसने अपनी शर्ट उतारी तो उधर पेट पर भी हल्का सा निशान था। अगर वो वक्त पर चाकू ना मोड़ता तो शान से पूरा चाकू अंदर घुसा चुकी होती। बुराक ने अपनी शर्ट फाड़ी और छोटा सा टुकड़ा अपने पाँव के गिर्द बांधा ताकि खून रोक सके। फिर उसने शीशे में खुद को देखा। उससे अगर इस वक्त किसी चीज़ का अफसोस था तो बस पेट पर पड़े उस निशान का था। वो जिम का शौकीन था और इतनी मेहनत से जो उसने बॉडी बनाई थी उस पर चाकू का निशान बुरा लग रहा था। अब मैं एक हफ्ते तक जिम नहीं जा सकूंगा, उससे अफसोस हुआ था। बुराक ने मुराद की अलमारी खोली और एक शर्ट निकालकर वो पहनने लगा। उसे इस वक्त मुराद की याद आई थी। अगर वो यहाँ होता तो कभी भी उसे यह न पहनने देता। आंख नम हुई थी, बहुत सी यादें झलकी थी, मगर ये वक्त भागने का था। उसने जूते पहने, अपनी शर्ट हाथ में उठाई और लंगड़ाते हुए बाहर निकला। बाहर आकर उसने फर्श से अपना खून साफ किया और अपनी गन उठाते हुए बाहर की तरफ लपका। नीचे रोड पर शानजे की लाश को देखकर वो रुका। उसका सारा खून 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 रोड पर बह रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। काश मैं तुम्हें अपने हाथों से मार पाता, अब अफसोस हो रहा है मुझे। वो पूरे सरा तरीके से मुस्कुराया था। शानजे खुद वहां से नीचे गिरकर मरी थी। उसे शानजे के मरने का अफसोस नहीं था, उसे ये अफसोस था कि वो शानजे को अपने हाथों से नहीं मार पाया। वो वाकई एक जुनूनी इंसान था जिससे अपने दुश्मन पर जरा सा भी तरस नहीं आता था। शानजे को यहाँ छोड़कर वो अपनी गाड़ी में बैठा था। शाम के 6 बज रहे थे। एक बड़ी सी रोड पर काले रंग की लैम्बोर्गिनी अंधाधुंध चलती दिखाई दे रही थी। अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा एक नौजवान लड़का नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी। शर्ट के आधे बटन खुले थे और उसके एब्स वाज़ेह नजर आ रहे थे। रंगत साफ और सफ़ेद थी। वो वाकई ऐसा मर्द था जिसको देखकर कोई लड़की भी खुद पर काबू नहीं पा सकती थी। साथ वाली सीट पर उसका मुलाजिम बैठा था। वो अपने छोटे साहब को नशे में धुत देकर गाड़ी आहिस्ता करने का बोल रहा था। रोड पर एक लड़का खड़ा उस दूर से आती हुई गाड़ी की वीडियो बना रहा था। आज उसकी वीडियो पर बहुत से लाइक्स आने वाले थे। फुटपाथ पर एक औरत अपनी छोटी सी बेटी को लिए खड़ी थी। वो औरत काफ़ी जल्दी में लगती थी। रोड पर सिग्नल रेड हुआ था। इस वक्त सब गाड़ियों के निकलने का वक्त था। उस औरत ने जल्दी से अपनी बेटी को गोद में उठाया और रोड क्रॉस करने लगी। छोटे साहब गाड़ी रोके, आगे सिग्नल रेड है, मुलाजिम ने बड़ी हिम्मत करके बोला था। मगर उस बिगड़े हुए अमीरजादी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। औरत अभी रोड के बीच में पहुंची थी कि उससे तेज स्पीड में चलती हुई गाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने हाथ का इशारा करके रुकने का कहा, मगर गाड़ी नहीं रुकी। फिर वो रोड पर भागकर फुटपाथ की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इतने में वो गाड़ी से हिट हुई। वो अपनी बेटी समेत हवा में उड़ रही थी। जब वो वापस रोड पर आकर गिरी तो गाड़ी ने उसे नीचे कुचलते हुए उसकी मौत को यकीनी बनाया। वह मीरजादा अपनी मौज मस्ती में 2 लोगों की जान ले गया था। उसने गाड़ी फिर नहीं रोकी और आगे की तरफ चलता गया। ये सब उस वीडियो बनाने वाले लड़के ने रिकॉर्ड किया था। छोटे साहब, ये क्या किया आपने? मुलाजिम के होश उड़े थे। कितनी दफ़ा बोला है कि मुझे गाड़ी चलाते वक्त तंग मत किया करो, अब क्या हुआ है? वो लापरवाही और गुस्से में बोला था। आपने एक औरत और उसके बच्चे को अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया है। उसे परेशानी के आलम में पसीने आ रहे थे। सो वॉट, दुनिया में रोज़ हज़ारों लोग मरते हैं। डैड ये सब देख लेंगे तो मुझे ये छोटे मोटे मसले न बताया करो। उसे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो इस वक्त अपने नशे में ड्राइविंग के मज़े ले रहा था। लायला सुल्तान काले रंग का लॉन्ग कोट पहने, आंखों पर चश्मे लगाए एक बड़े से मॉल में दाखिल हो रही थी। बाल हमेशा की तरह खुले छोड़े गए थे। यही हाल शीला का था। सर पर बड़ी सी टोपी पहनी थी जिसकी वजह से दोनों का आधा चेहरा ढका हुआ था। शुक्र है कि हम कहीं बाहर निकले, गोदाम में रह रहकर मैं पागल हो गई थी। शीला की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। पागल तो तुम शुरू से ही हो, कोई नई बात करो। लायला ने उसे फौरन रियलिटी चेक दिया था। आज तुम जो मर्जी कह लो, मेरा मूड बहुत अच्छा है। शॉपिंग में उसकी जान थी। मॉल लोगों से भरा हुआ था। वो दोनों बड़ी एहतियात से लोगों के बीच में से गुजर रही थी। शीला मॉल की एक एक दुकान में घुस रही थी और पागलों की तरह हर दूसरी चीज़ खरीद रही थी। इस वक्त वो दोनों एक बड़ी सी डिज़ाइनर शॉप पर खड़ी थी। हर तरफ काम से भरे हुए कपड़े लटक रहे थे। शीला ने एक लाल रंग की काम से भरी लंबी मैक्सी निकाली। शीशे के सामने खड़ी होकर वो उसे देखने लगी। ये क्यों ले रही हो अब? पास खड़ी लायला ने पूछा। बॉस उस दिन बता रहे थे ना कि हमारा अगला टारगेट एक रॉयल वेडिंग है, वहां पर पहनूंगी ये। वो बड़ी खुशी से बता रही थी। शादी तुम्हारी हो रही है जो इतना काम वाला सूट पहन रही हो? उससे तंज किया था। थीम वेडिंग है यार। लड़कियां लंबी घेरों वाली फूली हुई फ्रॉक और लड़के पैंट कोट पहनेंगे। पूरे मुल्क में बस इस शादी की धूम है। मैं तो सबसे ज्यादा तैयार होके जाऊंगी। उससे अरसे बाद तैयार होने का मौका मिल रहा था। खुदा को मानो यार, लाल रंग दुल्हन पहनती है, कोई और कलर देख लो। वो उसकी अकल पर मातम करते हुए बोली।
शीला ने मुंह बनाते हुए वो मैक्सी वापस रखी। तुम भी अपने लिए कुछ ले लो, शादी में ये जीन्स न पहन जाना। अब कि शीला ने तंज किया था। लाइला कोई जवाब दिए बिना अपने लिए कोई अच्छा सा सूट देखने लगी। फिर उसने ब्लैक कलर की पैरों तक आती प्रॉम निकाली। वो बिल्कुल सादा सी पूरे बाजुओं की फ्रॉक लग रही थी जो काफ़ी फूली हुई थी। वो किसी फेरी टेल की वाइब्स दे रही थी। मैं ये ले रही हूँ। लाइला को ये सादी सी प्रॉम अच्छी लगी। इतनी सादा सी। शीला को इतनी खास नहीं लगी थी। हाँ, तब उधर चोरी करने जाएंगे ना कि शादी में नाचने। वो सीधी बात करती थी। शीला ने लाइला को उसके हाल पर छोड़ते खुद के लिए फिर से काम से भरी हुई दूसरी प्रॉम निकाली। पुलिस की नाकाबंदी रोड पर लगाई गई थी। नाकाबंदी के अंदर मिन्हा कुछ पुलिस वालों के साथ खड़ी थी। उसने लॉन्ग कोट के साथ ड्रेस पैंट पहन रखी थी। बालों की ऊंची सी पोनी की हुई थी। रोड पर पड़ी उस औरत की हालत देखने के काबिल भी नहीं थी। हड्डियों का चूरा बन चुका था। नाकाबंदी के बाहर उसका शौहर खड़ा पागलों की तरह रो रहा था। मुझे फौरन इस रोड की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, मिन्हा ने हुक्म दिया था। यस मैम। एक पुलिस वाला सर हिलाता हुआ अपने काम पर लग गया। तभी नाकाबंदी के अंदर वो आता दिखाई दिया। आज वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मिन्हा उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ मेरे स्पाइडरमैन को? मैं स्पाइडरमैन? वो हैरत से बोला। हरकतें तुम्हारी बिल्कुल स्पाइडरमैन वाली हैं। हर दूसरे दिन दीवारों और छतों पर डटके होते हो। आज कौन सी दीवार चढ़ते हुए नीचे गिरे थे? उसने बुर्राक को लंगड़ाते देखकर अपना अंदाजा लगाया था। अल्लाह जी, बस हरकतें स्पाइडरमैन जैसी हैं, किस्मत स्पाइडरमैन जैसी ना हो। वो दुआ के लिए हाथ उठाकर मासूम लहजे में बोला। तुम ना उल्टे काम करना छोड़ दो। ज़रूर तुम किसी दीवार से गिरे हो और अब इज्जत रखने के लिए बता नहीं रहे। उसने बुराक का मजाक उड़ाया था। मैं दीवार से नहीं गिर सकता, इस काम में काफ़ी माहिर हूँ मैं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ की थी। तुम्हें पता चला? शान से अपने फ्लैट से नीचे गिरकर मर गई। उसके हाथ में चाकू भी था जो उसके पेट में मारा गया था। मिन्हा को ये सब पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था। हाँ, मुझे पता है। उसने इधर उधर देखते हुए बोला। बुराक, कहीं तुमने तो उसे नहीं मारा? मिन्हा को शक हुआ था। काश मैंने उसे मारा होता, लेकिन उसे उसकी इंतकाम की आग ने मारा है। मिन्हा ने बुराक की आंखें पढ़ने की कोशिश की थी। क्या वो सच बोल रहा है? बुराक को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि मिन्हा उस पर शक कर रही है। उसने अपना फ़ोन निकाला और कल रात अपनी और शानजे की फ़ोन पर हुई बातें मिन्हा को सुनाई, जिसमें वो साफ साफ मुराद के कत्ल का इकरार कर रही थी। हाँ, कल रात मैं उसको मारने गया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। वो मिन्हा को अपनी सफाई पेश कर रहा था। और मैं कैसे यकीन करूं? बुराक, मुझे पूरी बात बताओ। मिन्हा जानना चाहती थी कि वो सच बोल रहा है या झूठ। कल रात जब मैं उसको मारने गया तो उसने उल्टा मुझ पर ही कातलाना हमला कर दिया। पहले उसने मेरे पाँव पर चाकू मारा और फिर वही चाकू मेरे पेट पे मारने की कोशिश की। मैं वो रोका था। मिन्हा मुसलसल उसकी आंखें देख रही थी। अब तक की सारी कहानी उसे सच्ची लगी थी। मैंने चाकू का रुख मोड़ा और सीधा उसके पेट में घुस गया। ये सब सेल्फ डिफेंस में आता है। कानूनी और शरई तौर पर मुझे अपने दिफा का हक हासिल है। अगर मैं चाकू ना मोड़ता तो वो मेरी जान ले लेती। वो सच कह रहा था। सेल्फ डिफेंस के तौर पर कोई कानून उसे सजा नहीं दे सकता था। वो नीचे कैसे गिरी? मिन्हा को अगला सवाल यही था। बुराक ने गहरा सांस लिया। ये लड़की कितना शक करती थी। मैं खिड़की में खड़ा देख रहा था कि कोई गली में है या नहीं। इतने में पता नहीं वो कैसे उठी और चाकू लेकर मेरी तरफ भागी। मैं खिड़की से साइड पर हुआ। वो खुद को नहीं रोक पाई और सीधा नीचे जाकर गिरी। बड़े आराम से उसने ये सब बोला था। उसके लहजे में कभी भी घबराहट नहीं थी। ना ही वो नजरें चुरा रहा था, जो कि आम तौर पर झूठे लोग करते हैं। बुराक मिन्हा की आंखों में अपने लिए शक नहीं देख सकता था। आपको मुझ पर यकीन है या नहीं? उसने बड़े मान से पूछा था। बात यकीन की नहीं है बुराक। शानजे की मौत पर सबसे पहला शक तुम पर जाता है, उसने आराम से बोला था। उसकी मौत पर शक किसी पर नहीं जाता, क्योंकि उसने खुद वसीयत की थी कि मेरी मौत जैसे भी हो उसका जिम्मेदार मुराद होगा। अब मुराद तो जिंदा है नहीं, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन हुआ? बुराक ने उसे सब हकीकत बताई थी। ये सब मैं भी जानती हूँ। पुलिस ने केस चलने से पहले ही बंद कर दिया था। फिर भी आपने मुझ पर शक किया। वो मिन्हा की तरफ देखकर बोला था। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम अपने जुनून में आपे से बाहर हो जाते हो। बड़ा जानने लग गई हैं मुझे। खैर तो है, मासूम से लहजे में जवाब आया था। इस केस पर बात करने, मासूम आदमी। मिन्हा ने मासूम उसे तंज में बोला था। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं रहूँगा मासूम ही। आप बिला वजह मुझ पर शक करती हैं। मिन्हा ने हद है वाले अंदाज में सर हिलाया। अभी वो दोनों कोई और बात करते कि इतने में एक पुलिस वाला उनके पास आकर रुका। इस रोड की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। और ये सुनकर मिन्हा का पारा हाई हुआ था। क्या बकवास है? आखिर गाड़ी कौन सी थी, हमारे लिए जाना जरूरी है। वो तप चुकी थी। किसी बड़े बंदे का हाथ लगता है इसमें, वरना ऐसे ही पूरी रोड की सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं हो जाती। बुराक ने अपना तेज दिमाग इस्तेमाल किया था।
میم، ایک لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کی پوری ویڈیو اس کے پاس ہے. یہ سنتے ہی مینہا اس لڑکے سے ملنے کے لیے بھاگی تھی. برا خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہا تھا. اس کے پیٹ میں بھی ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا. مینہا اس لڑکی کے پاس کھڑی موبائل میں اپنی پوری ویڈیو دیکھ رہی تھی. اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور آگے اپنی ٹیم کے پاس فارورڈ کیا. وہ لڑکا یہ ویڈیو پہلے ہی ہر سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم پر لگا چکا تھا اور لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی تھی. لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اندر آخر کون بیٹھا ہے. تھوڑی ہی دیر میں مینہا کو ای میل آئی. یہ گاڑی باہر سے امپورٹ کروائی گئی تھی. گاڑی شاہ نواز صاحب کے بیٹے ہادی کی تھی. شاہ نواز اس ملک کے بڑے بزنس مینز میں شامل ہوتا تھا. ایسے کسی کو روڈ پر کچلنے کی ہمت کوئی امیر باپ کی اولاد ہی کر سکتی تھی. یہ تو شاہ نواز صاحب کے بیٹے ہادی کی گاڑی ہے. مینہا نے رپورٹ پر ساتھ کھڑے پولیس والے اور براق کو سنائی تھی. لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ ساتھ میں وہ لڑکا بھی کھڑا تھا. اس نے فوراً سے پولیس والوں سے اپنا فون واپس لیا اور وہاں سے بھاگا. تھوڑی دور آ کر اس نے ہر سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلا دی کہ یہ ایکسیڈنٹ کس نے کیا ہے. میم، کیس حل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو اوپر سے آرڈر آئے گا کہ آپ یہ کیس بند کر دیں. ایک پولیس والے نے اپنے سسٹم کی عکاسی کی تھی. میں یہ کیس کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گی. اس امیر زادے کی وجہ سے 2 جانے گئی ہیں. وہ بھی ضد کی پکی تھی. آپ چلیں میرے ساتھ، ہم آگے کیس پر ڈسکشن کرتے ہیں. براق نے اسے وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا. مینہا براق کے ساتھ ساتھ آگے چلنے لگی. لائلا اور شیلا ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر اٹھائے فوڈ کورٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں. وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن بنا آگے دیکھے چل رہی تھیں. سامنے سے ایک آدمی ان کے قریب آ رہا تھا. وہ بھی اپنے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا. بے دھیانی میں لائلا اور اس آدمی کی ٹکر ہوئی تھی. لائلا کے چشمے دور جا کر گرے تھے اور وہ آدمی زمین پر گھٹنوں کے بل گرا تھا. معاف کرنا بیٹا، آدمی بڑی نرمی سے بولا تھا. یہ آواز سن کر جیسے لائلا کو شوق لگا تھا. وہ آدمی زمین سے اٹھا اور ان دونوں کی طرف دیکھا. کچھ لمحوں کے لیے وہ دونوں ہی حرکت کرنا بھول گئے تھے. لائلا کی آنکھوں میں ڈھیر سکوے تھے. کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ سعد صاحب نے شرم سے آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھا. یہ وہی بچی تھی جس کو وہ ناران میں یوں تنہا چھوڑایا تھا. اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، لائلا نے ایک سرد لہجے میں بولا تھا. ماضی کی بری یادیں اور تکلیفیں اس کی آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں. ایک دفعہ میری بات سن لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. وہ منت کر رہے تھے. لائلا نے آنکھیں موڑ لیں. آپ دونوں بات کریں، میں یہ پاس والی دکان سے ہو کر آتی ہوں. شیلا نے خود کو وہاں غیر اہم سمجھا تھا. اس کے جاتے ہی لائلا نے سعد صاحب کو فوڈ کورٹ میں چلنے کا اشارہ کیا. نہ جانے کیوں، مگر وہ ان کی بات سننا چاہتی تھی. وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے. لائلا خاموش تھی اور سعد صاحب شرمندہ. میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے معاف کرو. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میرا گناہ معاف کیا جائے. ان کے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا اپنے گناہوں کا. لائلا خاموش رہی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں جانتا ہوں ایک چھوٹی سی بچی کے لیے اس دنیا میں اکیلے رہنا کتنا مشکل ہے. میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی کو کم نہیں کر سکتا. ان کی آنکھوں سے آنسو جھلکے تھے. لائلا نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا. آپ کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں. میں نے کیا کیا برداشت کیا، کتنی ماریں کھائیں، کتنی تکلیفوں سے مجھے گزرنا پڑا. آپ کو کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے. وہ شکوہ کر رہی تھی. میں شرمندہ ہوں تم سے. میں نے ہمیشہ تمہیں تمہارے حق سے محروم رکھا، لیکن اب اور نہیں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں میں کب مر جاؤں. تمہاری چاچی تو فاطمہ کی موت کے بعد پاگل ہو گئی ہیں. وہ دیواروں میں اپنا سر مارتی ہیں، اندھیرے میں چیخنے لگ جاتی ہے. لائلا کو ان کے لیے افسوس ہوا تھا. اس کی چچی کے ساتھ کارما ہوا تھا. میں ایک یتیم کی مزید حق تلفی نہیں کر سکتا. سلطان بھائی نے تمہارا پیدا ہوتے ہی ساری پراپرٹی اور گھر وغیرہ تمہارے نام کر دیا تھا، اور وہ میرے پاس تمہاری امانت ہے. تم جب چاہو مجھ سے اپنا حق لے سکتی ہو. وہ اپنے گناہوں کا بوجھ کم کرنا چاہ رہے تھے. کون سا حق؟ آپ کو میرے حق کی تب یاد نہیں آئی جب میں اسٹور روم میں چیختی تھی، منت کرتی تھی کہ مجھے باہر نکالیں. میں پورا پورا دن بھوکا رہتی تھی، چچی جان کی ماریں کھاتی تھی، تب آپ کبھی میرے حق میں نہیں بولے. اصل زیادتی آپ نے کی ہے میرے ساتھ. میں تو آپ کے بھائی کا خون تھی. ان انجان پہاڑوں کے بیچ میں مجھے تنہا چھوڑتے ہوئے آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آیا. اس کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہوا آپ کچھ نہیں جانتے. میری پوری زندگی برباد ہو گئی. مجھے وہ بننا پڑا جو میں کبھی بھی نہیں بننا چاہتی تھی. اب کہ وہ برسی تھی. چوری وہ کوئی شوق سے نہیں کرتی تھی، ایسے کرنے پر مجبور کر دی گئی تھی. سعد صاحب نے نظریں چرا لی تھی. میں ہر گناہ، ہر زیادتی کو ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر خدا کے نام پر مجھ سے اپنا حق لے لو. مجھے سلطان بھائی کے ساتھ تھوڑا سا منہ دکھانے لائق چھوڑ دو. وہ صرف گزارش کر سکتے تھے. لائلا نے تھوڑا سوچنا چاہا. میرا جواب آپ کو جلد مل جائے گا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. وہ تھوڑا الجھی ہوئی تھی.
क्या उसे अपना हक लेना चाहिए? आज तक उसने अपना हक खुद छीना था, आज पहली बार उसे अपना हक मिल रहा था। अभी वो दोनों कोई और बात करते कि लाइला की नजर सामने वाली टेबल पर पड़ी। बुर्राक गाड़ी चला रहा था और साथ मिन्हा बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। मिन्हा का फोन बजा। यस सर। उससे फोन उठाते हुए इज्जत से बोला। आगे से कुछ कहा गया था, मगर सर मैं ऐसे कैसे केस को छोड़ दूं? आधा केस हल हो गया है, बस हादी को पकड़ना बाकी है। वो थोड़ा हैरान हुई थी। समझने की कोशिश करो, शाहनवाज साहब की पहुंच ऊपर तक है। हमारे मुल्क में उनका बहुत बड़ा नाम है, आधा पाकिस्तान तो उनका मकरूज है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका नाम कितना बड़ा है, मुझे सिर्फ केस से फ़र्क पड़ता है और वो मैं पूरा हल करके रहूंगी। उसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। क्या हुआ? बुर्राक ने उसके बिगड़ते मूड को देखा था। वही जो होना था। बड़े आदमी का नाम सुनते ही उनके गुनाह छुपाने की कोशिशें जारी हैं। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस मुल्क में क्या होता था। आप ये केस नहीं छोड़ेंगी, मैं आपके साथ हूँ। उसने मिन्हा को तसल्ली दी थी। मिन्हा अपनी केस कभी भी नहीं छोड़ती, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। वो अपने काम के बारे में अटल थी। फिर उसने लैपटॉप पर लाइव न्यूज़ चैनल निकाला। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ कुछ इस तरह थी। नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। क्या शाम के वक्त मशहूर बिजनेसमैन शाहनवाज के बेटे हादी शाह की गाड़ी के नीचे आकर दो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। पुलिस अब तक हादी शाह को पकड़ने में नाकामयाब रही। क्या इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिलेगा, या पहले की तरह सबको खामोश करवा दिया जाएगा? जानने के लिए हमारे साथ रहिए। साथ में हादी की तस्वीर लगाई गई थी और वीडियो यूं भी चलाई जा रही थी, जिसमें साफ पता चल रहा था कि उसने ही एक्सीडेंट किया है। इतने सबूतों के बाद भी हमारा सिस्टम हमें खामोश करवाने की कोशिश कर रहा है। मिन्हा को अफसोस हुआ था। सब के सब उन अमीरजादों के पालतू कुत्ते बने हुए हैं जो अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाते हैं। बुर्राक ने उसका साथ दिया था। मिन्हा ने सोशल मीडिया खोला तो हर तरफ बस हादी और उस केस की बात हो रही थी। बहुत सारी आवाम उस औरत के हक में आवाज़ उठा रही थी, तो वहीं पर बहुत सारे लोग हादी की हिमायत में बोल रहे थे। ये इतना प्यारा है, उसे जेल में नहीं जाना चाहिए। मिन्हा ने एक लड़के का ट्वीट पढ़ा था। कौन हैं ये लोग? मिन्हा ने अपना सर पीटा था। कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है इंसान से। मेरी मकतूल के शोहर से गुजारिश है कि वो मेरे हादी को माफ़ कर दें। अगला ट्वीट कुछ इस तरह था। ये भी किसी लड़की की तरफ से किया गया था। ऐसे बेशुमार ट्वीट किए गए थे और सब के सब कम उम्र लड़कियों की तरफ से थे। कुछ ने तो बाकायदा हादी के हक में कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी थी। हमारी आवाम जाहिल की जाहिल ही रहेगी, वो राख ने तंज किया था। मतलब अगर वो प्यारा है तो क्या उसे कत्ल करने की इजाज़त है? मिन्हा को ऐसे लोगों की सोच पर अफसोस हुआ था। बुर्राक ने टेढ़ी नज़र करके हादी की तस्वीर देखी थी। इतना भी कोई प्यारा नहीं है, आंखें देखी टेढ़ी सी हैं। वो बुरा मान गया था। बुर्राक, तुमने अपनी आंखें टेढ़ी की हुई हैं। मिन्हा उससे और चिढ़ा रही थी। जो भी हो, ये कोई इतना हूर परा नहीं है जिस पर लड़कियां मर रही हैं। वो जल रहा था। ये परा क्या है? मिन्हा को हंसी आई थी। परी का जिक्र, परी का मुज़क्कर परा। अब ये भी पढ़ाऊँ आपको? मासूम से लहजे में वो हर बात कर देता था। ये सुनकर मिन्हा की हंसी नहीं रुक रही थी। उनका घर आ चुका था। बुर्राक ने गाड़ी रोकी। लाइला के सामने वाली टेबल पर एक फैमिली बैठी थी। उनके साथ एक 11 साल की बच्ची खड़ी थी। उनके टेबल पर 3 कुर्सियां खाली थीं, लेकिन उस बच्ची को वहां बैठने की इजाज़त नहीं थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो पूरी फैमिली को मज़े से बर्गर खाते हुए हसद भरी निगाहों से देख रही थी। अगर अपने साथ बिठाकर खिला नहीं सकते तो अपने मुलाजमीन को साथ लाते ही क्यों हैं? क्या इन लोगों के दिल में खुदा का खौफ नहीं है? उस मासूम बच्ची को ऐसे खड़ा देखकर लाइला को अपना आप दिखाई दिया था। वो फौरन अपनी जगह से उठी और उस बच्ची की तरफ बढ़ी। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने बच्ची से बड़े आराम से बात की थी। बच्ची काफ़ी डरी और सहमी हुई लगती थी। उसके जिस्म पर जगह जगह मारपीट के निशान थे। उसने अपने मालिकों की तरफ देखा। ओ बीबी, तुम कौन हो? और ये हमारी मुलाजमा है। औरत बड़े गुस्से में लाइला की तरफ देखकर बोली थी। मुलाजमा ही है ना, कोई मंडी से खरीदा हुआ जानवर तो नहीं है ना, जहां दिल किया जिसे खड़ा कर दिया। वो आगे से बरसी थी। तुम होती कौन हो हमारे मामले में बोलने वाली? औरत अपनी कुर्सी से उठी थी। मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों का इलाज करना अच्छे से जानती हूँ। वो भी लाइला सुल्तान थी। औरत गुस्से में बेकाबू हो गई थी। पूरा फोर्ट कोर्ट उन दोनों को देख रहा था। तेरी इतनी हिम्मत? उस औरत ने लाइला की तरफ हाथ बढ़ाया। लाइला ने उसका हाथ पकड़ा था। उसे उस औरत में अपनी मालिक दिखाई दी थी। वो पहले वाली लाइला नहीं थी जो मार खा लेती थी। उसने औरत का हाथ पकड़कर मरोड़ा था। वो औरत पूरा घूमी थी। लाइला में इतनी जान होगी उस औरत को अंदाजा नहीं था।
اپنے آپ پر اٹھنے والا ہر ہاتھ لائلہ سلطان کاٹ دیتی ہے، اس نے عورت کے کان میں بولا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ویڈیو بنا رہا تھا، پیچھے سے شیلا نے اس کا فون کھینچا اور فوراً ویڈیو ڈیلیٹ کی۔ وہ عورت درد سے کرہ رہی تھی اور اس کا شوہر لائلہ سے اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا بازو چھوڑ، وہ درد سے چلائی تھی۔ پہلے اس بچی پر کی گئی اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ، پھر چھوڑوں گی تیرا بازو۔ لائلہ نے اپنی شرط رکھی تھی۔ پہلے عورت تو آنا میں آئی، اتنے لوگوں کے سامنے وہ بچی سے معافی کیسے مانگے؟ لائلہ نے اس کا بازو اور زور سے پکڑا تھا، اب کہ اسے لگا تھا کہ اس کا بازو الگ ہو جائے گا۔ میں معافی مانگتی ہوں تم سے آمنہ بیٹا۔ اس عورت نے اپنے بچانے کے لیے معافی مانگی تھی۔ کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے یہ تمہارے پاس؟ لائلہ نے سوال کیا تھا۔ 1 سال سے، جواب اس کے شوہر نے دیا تھا۔ تو 1 سال کی جتنی تنخواہ بنتی ہے اس بچی کے ہاتھ میں رکھو، لائلہ نے اگلا حکم دیا تھا۔ اس آدمی نے تھوڑا سوچنے کا وقت لیا۔ لائلہ نے اس کی بیوی کی گردن دبوچی تھی۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں دے رہا ہوں۔ آدمی ڈرتے ہوئے اپنا والٹ نکالا، چند ہزار نکال کر بچی کے ہاتھ میں رکھے۔ لائلہ نے جھٹ اس عورت کو چھوڑا، وہ اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لائلہ نے اس بچی کی طرف دیکھا، وہ اپنی مالکن کو اس حالت میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اگلی بار اگر کوئی تمہارا حق کھانے کی کوشش کرے تو تم نے اس کا ایسا ہی حال کرنا ہے۔ چندہ، یہاں کوئی تمہارا حق نہیں دے گا، تمہیں اپنا حق چھیننا پڑے گا۔ لائلہ نے نرمی سے اسے زندگی کا فلسفہ سکھایا تھا۔ وہ واپس مڑی تو اس کے پیچھے ہی ساتھ صاحب کھڑے تھے۔ اس کے دماغ میں کچھ آیا تھا۔ کیا آپ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ لائلہ نے ان کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ہاں، میں تمہیں تمہارا حق دے کر۔ بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ اس بچی کی اچھے سے پرورش کریں گے، اس سے بالکل اپنی بیٹی کی طرح پالیں گے۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو ہر زیادتی کے لیے معاف کر دوں گی۔ اس کے لیے وہ سب کچھ معاف کرنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ ایک اور لائلہ سلطان کو جنم لیتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ انہیں امید کی کرن نظر آئی تھی۔ ساتھ صاحب نے بچے کا ہاتھ پکڑا، اب وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ آپ ایک لائلہ سلطان کی زندگی تو برباد ہونے سے نہیں بچا پائے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ کوئی اور بچہ لائلہ سلطان کی طرح برباد نہ ہو۔ اس نے ایک درد بھرے لہجے میں ساتھ صاحب سے بولا تھا۔ پھر وہ واپس مڑی۔ ساتھ صاحب میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اسے روکے۔ لائلہ سلطان دل کی بہت اچھی تھی، بس وقت اور حالات نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ بڑے سے لان میں شاہ نواز ٹہل رہا تھا۔ آج شام جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد پورا میڈیا ان پر تھو تھو کر رہا تھا۔ وہ نہایت غصے میں تھا۔ ہادی سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنی بار بولا ہے کہ خود پر قابو رکھا کرو، تمہاری وجہ سے میری 30 سالوں کی کمائی گئی عزت خاک میں مل گئی۔ وہ ہادی پر غصے میں برسے تھے۔ ہادی خاموش کھڑا تھا۔ پورا میڈیا تمہارے اور میرے خلاف بول رہا ہے، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، شاہ نواز غصے میں چلایا تھا۔ ڈیڈ، چند پیسوں کی ہی تو بات ہے، ان کی جیب پیسوں سے بھر دیں، پورا میڈیا خاموش ہو جائے گا۔ اس سے اپنے پیسے کا بہت ہی روب تھا۔ کس کس کو پیسہ دوں؟ لاکھوں لوگ تمہارے خلاف کیمپینگ بنا کر بیٹھے ہیں، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، دل تو چاہتا ہے کہ… ان کا بھاری ہاتھ ہادی پر اٹھنے ہی والا تھا کہ وہ رکے۔ اکلوتے بیٹے کو ملازموں کے سامنے مارا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ اشرف، تم ہادی کو گاؤں والی پرانی حویلی میں لے جاؤ، جب یہاں معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو واپس آ جانا۔ انہوں نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا۔ ڈیڈ، میں نہیں جا رہا گاؤں، آپ مجھے انگلینڈ بھیج دیں۔ ہادی موقع کی نزاکت کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، جو میں نے بولا ہے وہی کرو، شاہ نواز نے چپ کروایا تھا۔ یہ سن کر ہادی غصے میں اندر وہاں سے چلا گیا۔ اشرف اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد شاہ نواز نے کسی کو کال میں لائی تھی۔ میر صاحب، کیا حال ہیں؟ شاہ نواز نے بڑے آرام سے بات کی تھی۔ بس حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں سر، کیا کریں، مہنگائی ہی اتنی ہے۔ دوسری طرف سے باتوں ہی باتوں میں پیسے کی ڈیمانڈ کر دی گئی تھی۔ 10 لاکھ کا چیک تیار کر رہا ہوں آپ کے لیے، اور بتائیں کیا چاہیے؟ وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا، ساری گیم پیسے کی تھی۔ آپ حکم کریں سر، مجھ غریب سے کیا کام ہے؟ وہ بڑے جوش سے بولا تھا۔ ہادی والے کیس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ وہ سیدھا بات پر آیا تھا۔ انسپیکٹر مینہا، میں نے تو اسے فون کر کے فوراً کیس بند کرنے کا بولا تھا، مگر وہ نہیں مانی، بڑی ہی ضدی ہے۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا۔ مجھے اس کا نمبر بھیجو، جب پیسے کا لالچ ملے گا تو خود ہی کیس بند کر دے گی، انہوں نے طنز کیا تھا۔ دوسری طرف سے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا گیا تھا۔ منہا بھی اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس ہفتے کی رات کو نور کا نکاح فائنل ہو چکا تھا، اس سے ابھی بہت سارے کام کرنے تھے، اوپر سے کیس بھی حل کرنا تھا، وہ بہت زیادہ مصروف تھی۔ اس کا فون بجا، کال ہمایوں نے کی تھی۔ ابھی میں تمہیں ہی کال کرنے والی تھی، اس نے بڑے آرام سے بولا تھا۔
یہ ہادی کے کیس کا کیا چکر ہے؟ پورا سوشل میڈیا پاگل ہو گیا ہے۔ وہ کافی پیتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، بہت ہائی پروفائل کیس ہے۔ شاہ نواز کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا پچھلے 2 دن سے ملک سے باہر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس عورت کی فیملی کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف بڑھی، ساتھ والے اپارٹمنٹ کی طرف جھانکا، مگر وہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈٹائی کی حد دیکھو، پہلے CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کروا دی، پھر اپنے ہی بیٹے کو ہی باہر بھیج دیا، اور اب اس ویڈیو کو بھی جھوٹا بول رہے ہیں، جیسے ہم تو 2 سال کے دودھ پیتے بچے ہیں نا، جنہیں سچ نہیں پتا۔ وہ اسے سب بتا رہی تھی۔ تم یہ کیس چھوڑ دو۔ ہمایوں نے اس کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنا مشورہ دیا تھا، اور منہا کو حیرانی ہوئی تھی، بے حد حیرانی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں انسپیکٹر منہا ہوں، کسی کے آگے میری جوتی بھی نہ جھکے۔ وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ تم شاہ نواز کو نہیں جانتی، وہ تمہارا کیریئر برباد کر دے گا۔ بات کو سمجھو منہا، تم ان سے نہیں لڑ سکتی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ عوام میرے ساتھ ہے، تم میرے ساتھ ہو، اور براق کا نام پورا نہیں ہوا تھا کہ ہمایوں نے اس کی بات کاٹی۔ میں اس سب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ شاہ نواز کے مجھ پر بہت احسان ہے، میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ہمایوں نے اسے صاف انکار کیا تھا۔ کون سے احسان؟ کہیں تم بھی تو اس کے پالتو کتوں میں سے ایک نہیں ہو؟ منہا کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا ہمایوں بھی رشوت خور تھا؟ منہا، آج کل کے زمانے میں پیسہ کسا برا لگتا ہے؟ شاہ نواز تمہیں بھی کال کر کے پیسے کی آفر کرے گا، تم جتنے مرضی پیسے مانگ لینا، بس کیس بند کر دو۔ شاہ نواز نے اپنا پہلا بندہ اس کی طرف بھیجا تھا۔ اسے ہمایوں سے سب کی امید نہیں تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے سالوں میں نہ میں تمہیں صحیح سے جان پائی، نہ تم مجھے۔ منہا اپنے ضمیر کا سودا کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں حق اور سچ کا ساتھ دوں گی، چاہے مجھے برباد ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ جب میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، تو میں اپنے رب کا حکم کیسے نہ مانوں؟ وہ اسے صاف صاف اور کھری کھری سنا رہی تھی۔ تم واقعی ایک ضدی اور انا پرست لڑکی ہو، جس سے صرف اپنی انا پیاری ہے۔ سچ کا سامنا کر کے ہمایوں کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ ضد ہے تو پھر ضد ہی صحیح، مگر میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں۔ تم جیسوں کی طرح کسی انسان کی جی حضوری نہیں کرتی، اور آئندہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہا تمہارے لیے مر گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک لمحہ لگاتی تھی رشتہ ختم کرنے کے لیے۔ ہمایوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اس سب میں اس نے بلا وجہ منہا کو کھو دیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ منہا کو منا لے گا۔ کیا واقعی؟ تم نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ شیلا نے کمرے میں گھستے ساتھ سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں، اسے واقعی سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم اپنی باپ کی پراپرٹی بیچ کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ زندگی تمہیں ایک اور موقع دے رہی ہے، یا شاید زندگی تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا ہرجانہ بھر رہی ہے۔ شیلا نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے سمجھایا تھا۔ ایک دم سب اتنا اچھا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے ایک اچھی دوست مل گئی، مجھے میری پسند کا، میری عزت کرنے والا مرد مل گیا، اور اب میرے حق کی پراپرٹی۔ کچھ غلط ہے اس سب میں۔ سب ایک دم اچھا ہو گیا تھا، اس کی زندگی پرفیکٹ ہونے لگی تھی۔ اف میرے اللہ، کچھ غلط نہیں ہے۔ تم فضول میں منفی سوچ رہی ہو، خود کو مثبت کرنے کی کوشش کرو۔ زندگی تم پر مہربان ہو رہی ہے میری دوست۔ وہ لائلہ کو کسی بچے کی طرح سمجھا رہی تھی۔ مجھے سب کی عادت نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ پرفیکٹ چیزیں مجھے راس نہیں آتی۔ آسان نہیں ہوتا سب بھول پانا لائلہ میری جان، یہی تو زندگی ہے۔ کبھی ہمیں سب مل جاتا ہے، اور کبھی ہم سے سب چھین لیا جاتا ہے۔ زندگی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہمیں بس ہر حالات میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ تمہارا ماضی دردناک تھا تو مستقبل اچھا ہوگا۔ اب اپنے گزرے کل کا سوچ سوچ کر اپنا آج مت خراب کرو۔ جو زندگی دے رہی ہے اسے خوشی سے اپناؤ۔ لائلہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آج کافی سمجھدار لگ رہی تھی۔ زندگی اتنی پرفیکٹ لگنے لگی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ چھن جانے کا۔ پتہ ہے شیلا، پہلے میں بہت نڈر تھی، مجھے کوئی چیز خوفزدہ نہیں کرتی تھی، لیکن اب مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں میں اپنے پیاروں کو کھو نہ دوں۔ جیسے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے زندگی اور مشکل ہو گئی ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنے مخلص لوگ دیکھے تھے، اور اب وہ انسیکیور ہو گئی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے۔ ہاں ہاں، سمجھ گئی ہوں تمہاری بات، اب اور لیکچر نہیں سنانا مجھے۔ جب میں چلی جاؤں گی نا، تو تم میری انہی باتوں کو یاد کرو گی۔ شیلا نے اسے خبردار کیا تھا۔ کیوں؟ تم کدھر جا رہی ہو؟ لائلہ کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ میں نے کل رات احمد سے بات کی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چوری ہماری آخری چوری ہوگی، پھر ہم کسی اور ملک میں جا کر اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ شیلا بہت خوش تھی۔ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ لائلہ کو غصہ آیا تھا۔ یار کل سے موقع ہی اب ملا ہے۔
वो अपनी सफाई दे रही थी। जाओ अब निकलो यहाँ से, मैं नहीं कर रही तुमसे बात। लायला ने मुंह मोड़ा था। शीला अब उससे मनाने में लगी हुई थी। शाम का वक्त था। लॉन में मिन्हा और बुराक सोनिया बेगम के साथ बैठे हुए थे। आंटी, आपने फिक्र ही नहीं करनी, शादी के सारे इंतजाम मैं खुद देख लूंगा। बुराक सोनिया बेगम के साथ बैठा चाय पी रहा था। बस बेटा, मिन्हा पर बड़ी जिम्मेदारी है, तुम उसकी मदद करवा देना, वो बड़े मान से बोली थी। हॉल तो मैंने और मिन्हा ने आज बुक कर लिया था, खाना भी डिसाइड हो गया है, अब बस शॉपिंग रह गई है, वो तो नूर खुद ही कर लेगी अपनी। वो सोनिया को सब बता रहा था। चाय के कप खाली हो चुके थे। सोनिया बेगम चाय ट्रे में चाय के खाली कप डालकर अंदर की तरफ लपकी। अब हम कुछ देर केस पर बात कर लें। आज का सारा दिन तो केस की तैयारी, शादी की तैयारी में निकल गया है। मिन्हा को केस कल हल करने की जल्दी थी। हादी अपने घर पर नहीं है, और शाहनवाज ने जो हादी के इंग्लैंड के टिकट दिखाए थे वो फेक थे। हादी कोई 2 दिन पहले इंग्लैंड नहीं गया। बुराक ने बोलना शुरू किया। उसके दोस्तों से मालूम हुआ है कि उस शाम को वो उनके साथ था। हादी ने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था। फिर नशे की हालत में उसने ड्राइविंग करने की जिद पकड़ ली। उसके मुलाजिम ने उसे ड्राइविंग करने से रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। बुराक ने उसे सारी रिपोर्ट दी। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो उस वक्त गाड़ी में अकेला नहीं था, उसका मुलाजिम भी उसके साथ था। फिर उस मुलाजिम का पता करो, वो गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिन्हा ने उससे अगला टास्क दिया था। उसका मुलाजिम मर जाएगा मगर हादी के खिलाफ गवाही नहीं देगा। बुराक ने सच बताया था। जब हम उसकी कमजोरी पर हाथ रखेंगे तो अच्छे से गवाही देगा। मिन्हा जानती थी कि सच कैसे निकलवाना है। मैं जानता हूँ इस केस के सिलसिले में आपको काफ़ी प्रेशराइज किया जाएगा, धमकियां भी मिलेंगी, लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी। वो उसे तसल्ली दे रहा था। चाहे जो भी हो, आप ये केस बंद नहीं करेंगी। हमेशा की तरह मैं आपके साथ हूँ, और आपको नुकसान पहुंचाने वाले हर शख्स को पहले मुझसे टकराना होगा। वो जानता था कि जब मिन्हा केस बंद नहीं करेगी तो शाहनवाज दूसरा तरीका अपनाएगा। मिन्हा ने उसकी आंखों में देखा। वो ये सब दिल से कह रहा था। बुराक उसके साथ था। मिन्हा के लिए यही काफ़ी था। थैंक यू बुराक, मुझे अब तक हर शख्स ने यह केस छोड़ने का बोला था। तुम पूरी दुनिया में वो वाहिद शख्स हो जो मेरे साथ खड़ा है। उससे बुराक पर फख्र महसूस हुआ था। बुराक हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिन्हा और बुराक के लिए यह हफ्ता काफी मसरूफ साबित हुआ था। 2 दिन में ही पूरा सोशल मीडिया खामोश हो चुका था। एक मिन्हा थी जो अकेली केस के पीछे लगी हुई थी। उसे पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। सब समझे थे कि वो खुद ही तंग आकर केस छोड़ देगी, लेकिन सब मिन्हा को गलत समझे थे। मिन्हा ने शाहनवाज के हर घर पर छापा पड़वाया था। हादी कहीं नहीं मिला था। अब बस एक हवेली बची थी, लेकिन उसकी ऑफिशियल हफ्ता इतवार की छुट्टी आ गई थी। वो उस हवेली पीर वाले दिन जाएगी, उसने इरादा किया था। मिन्हा ने शाहनवाज को मजबूर कर दिया था कि वो खुद उससे बात करे। उससे मिन्हा को कॉल मिलाई थी। मैं शाहनवाज बात कर रहा हूँ। मिन्हा के फ़ोन उठाते साथ वो बोला था। जी जी शाहनवाज साहब, बताएं क्या काम है मुझसे। वो बड़े आराम से बोली थी। मैं मकतूल के घर वालों को इस्लामी तौर पर दीद देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम केस बंद कर दो। वो सीधा बात पर आए थे। केस फिर भी होगा। नशे की हालत में ड्राइविंग करना कानूनी जुर्म है। वो अभी भी केस पर कायम थे। मैं उसको भी देख लूंगा, बस तुम ये केस छोड़ दो। बदले में जितनी रकम मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ। उन्होंने रिश्वत की ऑफर की थी। हर किसी का ज़मीर बिकाऊ नहीं होता। मैं ये केस नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी बात पर अभी भी कायम थी। तुम बहुत पछताओगी। मेरे एक फ़ोन कॉल से तुम्हारा सारा करियर तबाह हो सकता है। वो उसे धमकी दे रहा था। मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा। कम से कम मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं होगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। सीधा जवाब मुंह पर मारा था। तुम इस जंग में हार जाओगी इंस्पेक्टर मिन्हा। वो थोड़ा गुस्से में बोले थे। मैं जीतूं या हारूं, दोनों सूरतों में तुम्हारी हार पक्की है शाहनवाज। वो भी आगे से गौर आई थी, और इतना सुनकर शाहनवाज ने फ़ोन बंद किया था। अब कोई सख्त कदम उठाने की बारी थी। मिन्हा को इस मुल्क के सिस्टम पर अफसोस हुआ था। यहाँ हर शख्स को खामोश करवा दिया जाता था जो हक के साथ देना चाहता था। क्या ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ पर पैसा बोलता है और हक की आवाज़ को दबाया जाता है? हफ्ते की रात। मिन्हा का घर लाइट से सजा हुआ था। हर तरफ मेहमान ही मेहमान थे। अचानक शादी का सुनकर सबको ही हैरानी हुई थी। आधा खानदान तो इस बात पर शिकवा कर रहा था कि बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी क्यों की। बीजान और हुमायूं गैरों की तरह सीधा हॉल में आए थे। बीजान अभी तक नाराज थी, और हुमायूं मिन्हा का इंतजार कर रहा था कि कब वो हॉल में आए और वो उससे माफी मांगे। बुर्राक गेट से अंदर दाखिल हो रहा था। उसने काले रंग का शलवार कमीज पहन रखा था, ऊपर काली ही रंग की वेस्ट कोट पहन रखी थी।
قمیص کی آستین اوپر چڑھائی ہوئی تھی، ہاتھ میں گھڑی لگائے، بال آج اچھے سے بنائے ہوئے تھے۔ وہ آج کافی دنوں بعد تیار ہوا تھا اور بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سونیا بیگم بھی تیار ہو کر براق کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کھانا میں دیکھ آیا ہوں، سب اچھے سے پک رہا ہے۔ نور کو بھی پالر سے ہال میں چھوڑ آیا ہوں، ابھی اس کا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ باقی حمزہ سے میری بات ہو گئی تھی، وہ لوگ بس بارات لے کر نکلنے والے ہیں۔ براق نے سونیا بیگم کو سب تفصیل سے بتایا تھا۔ شکریہ بیٹا، تم نے نور کو بالکل اپنی بہن سمجھ کر اس کی شادی کی تیاری کروائی ہے، جبکہ ہمارے اپنے رشتہ دار مہمانوں کی طرح ہال میں بیٹھے ہیں۔ ان کا اشارہ ہمایوں کی طرف تھا۔ ارے کیسی بات کر دیا آپ نے، آپ لوگ میری فیملی ہیں، چلے میں آپ کو بھی ہال تک چھوڑ دوں۔ اس نے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بیٹا، میں تو عائشہ کی گاڑی میں چلی جاؤں گی، تو مہنا کو لے آنا اپنے ساتھ، میڈم کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا پالر سے ہو جانا تیار، مگر مجال ہے جو میری سنے۔ سونیا بیگم کو کافی غصہ آیا ہوا تھا۔ آپ جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے فوراً اندر کا رخ کیا تھا۔ وہ جیسے جیسے اوپر جا رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخر منہا کیسی لگ رہی ہوگی، وہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ کام پورا ہونا چاہیے۔ شاہ نواز کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جی باس، کام آج رات تک ہو جائے گا، دوسری طرف سے ایک آدمی بھاری آواز میں بولا تھا۔ اور یہ بات راز رہنی چاہیے، اگر سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ چلا تو یاد رکھنا تم لوگ زندہ نہیں بچو گے، شاہ نواز نے دھمکی دی تھی۔ بیچاری منہا نے سب انتظام خود کیا، آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے پھپھو کی طرف جانے دے۔ ہمایوں بی جان سے بات کر رہا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ اکیلے کیوں کرتی، وہ ہے نا ان کا پڑوسی، اس سے مدد کروائی ہوگی، کافی اچھا لڑکا ہے۔ بی جان کو براق اچھا لگتا تھا۔ کون پڑوسی؟ ہمایوں کو حیرت ہوئی تھی۔ منہا کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، براق نام ہے، اکیلا رہتا ہے اپنے اپارٹمنٹ میں۔ بی جان اسے سب بتا رہی تھی۔ ہمایوں کے دماغ میں یہ نام گونجا تھا، اس نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہوا تھا، مگر کہاں اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ براق کمرے میں داخل ہوا تھا۔ منہا شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ پرپل رنگ کا کھلے گھیروں والا لہنگا اور چولی پہن رکھی تھی۔ اس کی چولی لہنگے کے بیلٹ سے نیچے تک تھی۔ منہا نے بال نیچے سے ہلکے ہلکے کرل کر کے کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں چھوٹا سا بریسلٹ اور گلے میں ہلکی سی چین پہنی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ جیولری نہیں پہنتی تھی، میک اپ بھی ہلکا کیا ہوا تھا، آنکھوں کو کاجل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ براق دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہرا تھا۔ اتنا خوبصورت نظارہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے کوئی حور لگ رہی تھی۔ براق کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ منہا نے شیشے میں پیچھے براق کو کھڑا دیکھا تو وہ اس کی طرف مڑی۔ ابھی براق صرف اس کا سائڈ پوز دیکھ کر نہیں سنبھلا تھا کہ وہ اب اس کے سامنے منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے میک اپ بالکل ہلکا کیا ہوا تھا، لیکن وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ آخر کون اس کو دیکھ کر خود پر قابو رکھ سکتا تھا؟ وہ براق کی طرف بڑھ رہی تھی۔ براق کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی نے اسے سگنل دیا۔ اس نے اوپر کر کے گھڑی میں دیکھا، ساتھ میں منہا نے بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظر اب گھڑی پر تھی۔ گھڑی کے مطابق اس وقت براق کی دل کی دھڑکن اب نارمل تھی، وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ منہا نے ہلکا سا بلش کیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے براق کو دیکھ کر بولا۔ جنت کی حور لگ رہی ہیں۔ براق بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہاں دیکھ لی جنت کی حور؟ منہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ دیکھی تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل آپ جیسی ہوگی۔ اس نے منہا کی تعریف کی تھی۔ وہ 2 لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی، پھر ایک دم اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بارات آ جائے گی۔ منہا کو فکر ہوئی تھی۔ ہاں تو چلے، میں آپ کو ہی لینے آیا تھا۔ براق منہا سے نظر اب تک نہیں ہٹا پایا تھا۔ میری لپسٹک ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی، اتنی بار بدل چکی ہوں۔ اس سے الجھن ہو رہی تھی، پھر یک دم اس کے دماغ میں بیٹھا۔ تم ادھر بیٹھو۔ اس نے براق کو بیڈ کے سامنے لگے صوفے پر بیٹھنے کا بولا۔ براق حکم مانتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ جلدی سے میک اپ باکس لائی، اس میں 4-5 لپسٹکس تھیں۔ اس نے ایک لپسٹک کھولی اور براق کو اپنے ہونٹ آگے کرنے کو کہا۔ آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے۔ براق کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ فضول ہی بولنا تم بس، اسے منہ بناتے ہوئے بولا۔ یار میں نے اگر لپسٹک لگا کر بدلی تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر چیک کرتی ہوں، جو اچھی لگے گی وہی لگاؤں گی۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے کہہ رہی تھی۔ معاف کرے مجھے، میں نہیں لگا رہا، توبہ توبہ۔ براق نے فوراً انکار کیا تھا۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ چپ کر کے بیٹھو تو چپ کر کے بیٹھو، بس 2 منٹ کی بات ہے، پھر تم اتار دینا، منہا بڑے مان سے کہہ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ لپسٹک اس کی طرف بڑھائی۔ میں لڑکا ہوں منہا، اس نے خود کو بچانے کے لیے دلیل دی تھی، اور اچھے لڑکے لڑکیوں کی بات مانتے ہیں۔ اب کہ اس نے شان سے بولا تھا۔ براق خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ بل ہم منہا کو وہ کیسے انکار کرے؟
मिन्हा ने उसके होंठों पर एक लिपस्टिक लगाई थी। उसे पसंद नहीं आई। फिर उसने टिश्यू से होंठ साफ किए। वो लिपस्टिक लगा रही थी और बुराक बस उसकी आंखों में गुम बैठा रहा। उसे कोई होश नहीं था कि वो उसके साथ क्या हो रहा था। वो वाकई जादूगरनी थी जो बुराक को अपने शहर में ले लेती थी। मिन्हा ने तीसरी बार लिपस्टिक लगाई थी। ये वाला रंग उसे पसंद आया था। फिर उसने बुराक को टिश्यू दिया अपने होंठ साफ करने के लिए और खुद शीशे के सामने खड़ी लिपस्टिक लगाने लगी। उसके बाद वो दोनों शादी हॉल के लिए निकले थे। शादी हॉल में पहुंचते ही वो दोनों अलग अलग हुए थे। बुराक पीछे की तरफ खाने का हिसाब किताब देखने भागा था और मिन्हा बारात का इस्तकबाल इंतजाम देख रही थी। हुमायूं मिन्हा को देखकर उसकी तरफ आया था मगर वो उसे नज़रअंदाज करती हुई नूर के पास चली गई थी। थोड़ी देर बाद बारात आ गई थी और अब दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। सब घर वाले इधर ही मौजूद थे। निकाह की तकरीब शुरू हो चुकी थी। निकाह के फौरन बाद खाना लगाया गया था। सोनिया बेगम ने हुमायूं को अपनी तरफ इशारा किया। पीछे देगे पक रही हैं। बुराक अपनी निगरानी में सब बनवा रहा होगा। उससे पूछो कि और कितना वक्त है खाने में। सोनिया के कहते ही वो फौरन पीछे की तरफ लपका। दूसरी तरफ बुराक पिछले दरवाजे से हॉल में एंटर हो रहा था। खाना तैयार था, बस सोनिया बेगम से इजाजत लेनी थी। हुमायूं पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि सामने से आते बुराक को देखकर वो रुका। वो हैरान हुआ था, बुराक इधर क्या कर रहा है। जितना शौक हुमायूं को लगा था उससे कहीं ज्यादा बुराक को लगा था। हुमायूं उसकी हकीकत जानता था। अगर उसने मिन्हा को बता दिया। दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। यह हॉल का पिछला हिस्सा था जो कि बिल्कुल खाली था। क्या मैं वजह जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुमायूं ने गुस्से से सवाल किया था। मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें उससे मतलब? जवाब उल्टा दिया गया था। तुम जैसा जासूस यहाँ किसी की जासूसी ही करने आया होगा, उसने तंज किया था। और तुम जैसा रिश्वतखोर जो पैसे के लिए किसी को भी गैर कानूनी तौर पर अंदर बंद कर देता है, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसने हुमायूं को आईना दिखाया था। अपनी बकवास बंद करो। नूर मेरी कज़न है और तुम मिन्हा के साथ कौन सी जॉब कर रहे हो? मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि मिन्हा से दूर रहो। वो धमकी दे रहा था। और तू अपनी ज़बान से मिन्हा का नाम तक ना ले, वरना बोलने के काबिल भी नहीं रहोगे। वो भी आगे से बरसा था। मैं उसका कज़न हूँ और बहुत अधूरी रह गई थी। कज़न हो ना तो कज़न ही रहो, ज़्यादा भाई बनने की ज़रूरत नहीं है। उसने हुमायूं को उल्टा और चढ़ाया था। अभी हुमायूं कोई जवाब देता कि पीछे से मिन्हा आती दिखाई दी। बुर्राक, तुम इधर खड़े हो, जल्दी मेरे साथ आओ। उसने हुमायूं को एक बार एक और इग्नोर कर दिया था। आप पहले आंटी से पूछ दें कि मैं खाना लगवा दूं या नहीं। वो जो अभी गुस्से में था बड़ी नरमी से बोला। मुझे तुम्हें कुछ बताना है मिन्हा। हुमायूं काफ़ी जल्दी में लगता था। मिन्हा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। तुम कोई मुलाजिम नहीं हो बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा हो। चलो आओ, फैमिली फ़ोटो बनवानी है और अम्मी भी तुम्हारा पूछ रही हैं। खाना वेटर्स लगा लेंगे। उसने बुराक की तरफ देख कर बोला था और बुराक ने फातिहाना निगाहों से हुमायूं को देखा था। आप चले, मैं बस वेटर्स को बता दूं खाना लगाने का। वो मिन्हा की तरफ देख कर बोला। हुमायूं यहाँ खुद को कबाब में हड्डी समझ रहा था। उससे मिन्हा का बाजू जोर से पकड़ा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तुम्हें इस शख्स के बारे में कुछ बताना है। उससे मिन्हा की तरफ गुस्से से देख कर बोला था। बुराक से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसका जुनून और गुस्सा बहुत बुरा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मेरा बाजू छोड़ो, उसे तपे हुए अंदाज में बोला था। हुमायूं ने उसका बाजू नहीं छोड़ा था। पहले मेरी बात सुनो, वो चिल्लाया था। मिन्हा ने जोरदार थप्पड़ से उसके मुंह पर रसीद किया। हुमायूं को शौक लगा था। मैंने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, वो चीखी थी। हुमायूं ने दोबारा उसका हाथ पकड़ना चाहा। जब इन्होंने कहा है कि उनका बाजू छोड़ो, उनको तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? बुर्राक ने हुमायूं का गिरेबान पकड़ा था। इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हुमायूं ने भी बुर्राक का गिरेबान पकड़ा। दोनों की आंखों में जुनून तारी था। बुर्राक हुमायूं को मुक्का मारने वाला था कि मिन्हा ने अपनी खामोशी तोड़ी। बुर्राक, तुम मेरे साथ चलो, मैं नूर की शादी में कोई तमाशा नहीं चाहती, उसने बुर्राक की तरफ देख कर बोला था। मिन्हा को मान था कि बुर्राक उसकी बात नहीं टालेगा। बुर्राक ने हुमायूं को घूरी करवाते हुए उसे छोड़ा। आज तो बच गया मेरे हाथों से, आइंदा नहीं बचेगा, उसने हुमायूं के कान में बोला था। फिर वो मिन्हा के साथ अंदर की तरफ दाखिल हुआ। हुमायूं वहीं खड़ा गुस्से में रहा। बारात जा चुकी थी और सब मेहमान भी वापस जा रहे थे। बीजान की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हुमायूं उन्हें लेकर पहले ही जा चुका था। सोनिया बेगम घर के लिए निकल रही थी। बुराक और मिन्हा यहाँ खड़े थे। उन्होंने सारा हिसाब किताब चुकाना था। मिन्हा अपने बैग में आरामदेह पजामा और शर्ट रख के लाई थी। वो इतने काम वाले कपड़ों की आदी नहीं थी, इसलिए बारात के निकलते ही वो कपड़े बदल चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों हॉल से बाहर निकले। बुर्राक के दिल में हुमायूं को देखकर एक खतरा लाहक हो गया था। उससे अब जल्द से जल्द अपने दिल की बात मिन्हा से करनी थी। उसने जल्दी में कहीं फ़ोन किया और कुछ इंतजामात करवाए। थोड़ी देर बाद बुर्राक गाड़ी चला रहा था और मिन्हा साथ बैठी थी।
बुर्राक की गाड़ी मार्गिला के पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। मिन्हा थोड़ी हैरान हुई। ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। मिन्हा ने मार्गिला के पहाड़ों पर चढ़ते हुए बोला। हाँ, क्योंकि हम किधर कहीं और जा रहे हैं। उसने ड्राइविंग करते हुए जवाब दिया था। किधर? उसने हैरानी से सवाल किया। समथिंग स्पेशल, बुर्राक ने बड़े प्यार से बोला था। मिन्हा खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी मोनाल के बाहर रुकी थी। वहां आज कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। लगता था कि पूरा मोनाल खाली था। बुर्राक को जिस घड़ी का सबसे ज्यादा इंतजार था वो घड़ी आ चुकी थी। उसने मिन्हा को अंदर चलने का इशारा किया। ये सारा मोनाल खाली क्यों है? मिन्हा को हैरत हुई थी। हाँ, क्योंकि मैंने पूरा मोनाल बुक करवा लिया था, उसने आम से लहजे में बोला। अंदर रूफ टॉप पर हर तरफ गुब्बारे लगाए गए थे। मोनाल किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। साथ हल्का हल्का म्यूजिक भी लगा हुआ था। पूरा रोमांटिक माहौल बनाया गया था। बुराक आगे आगे चल रहा था और मिन्हा उसके पीछे पीछे। फिर वो मोनाल के किनारे पे आके रुका। इधर से नीचे पूरा इस्लामाबाद नजर आ रहा था। वो दोनों आमने सामने खड़े थे और पीछे इस्लामाबाद का मंजर था। ये रात काफी हसीन लग रही थी। मुझे आपको कुछ बताना था। उसे जिंदगी में पहली बार इतनी घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसी क्या बात है जो गाड़ी में नहीं हो सकती थी? मिन्हा ने हैरत से सवाल किया। वो बहुत घबरा रहा था। बुराक, मुझे जल्दी घर जाना है, साफ साफ बताओ। उससे उलझन हुई थी। साफ बात यह है कि मुझे किसी से मोहब्बत है, उसने हिम्मत करके एक सांस में बोला था। मिन्हा कुछ लम्हों के लिए साकित हुई थी। क्या वो जो समझ रही थी वो सच था? कौन पसंद है? दिल तेजी से धड़का था। बुराक ने एक नज़र उसे देखा। मिन्हा भी उसी की तरफ देख रही थी। यहाँ चांद के नीचे उन दोनों के सिवा कोई न था। मेरी आंखों में आपके सिवा कौन है? बुराक ने सीधी बात की थी। आखिर दिल की बात जुबान पर आ गई थी। मिन्हा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, मगर वो बेख्तियार मुस्कुराई थी। मैं जानता हूँ आपको ये सब हैरान कर रहा होगा, लेकिन सच यही है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और आज से नहीं, पिछले 2 सालों से। मैं नहीं जानता कि आपका रद्द अमल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब मेरे दिल पर आपके सिवा किसी का हक नहीं। वो बड़े प्यार से बोल रहा था। मिन्हा तो जैसे बुत बन गई थी। सबको मुंह पर जवाब देने वाली मिन्हा आज खामोश थी। आपके सामने मेरे लिए पूरी दुनिया बेमकसद है। मैं चाहकर भी आपका ख्याल खुद से जुदा नहीं कर पाता। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ खोया है मिन्हा, मगर मैं आपको नहीं खो सकता। आप मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी हैं। ये तो अल्फाज थे, असल तो उसकी आंखें बोल रही थी। मिन्हा को बुराक के प्यार की शिद्दत उनमें दिखाई दी थी। आपको अपने नाम का मतलब पता है? शायद आज वो सब कह देना चाहता था। मिन्हा ने नफी में सर हिलाया। वो जैसी गूंगी हो गई थी। मिन्हा का मतलब है तोहफा। आप वाकई मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है। अल्लाह फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। लगता है उसने मेरी जिंदगी की हर मुश्किल के बाद वाली आसानी को आपकी शक्ल में अता किया है। अब के वो मिन्हा की आंखों में देख कर बोला। उसने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसको खोला। फिर वो मिन्हा के सामने घुटने के बल बैठा। क्या आप इस मासूम आदमी की शरीक हयात बनना पसंद करेंगी? उसने मिन्हा के सामने डायमंड की अंगूठी रखी थी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। वो ये अंगूठी बहुत अरसे पहले ही खरीद चुका था, बस असल वक्त का इंतजार था। मिन्हा अभी भी खामोश खड़ी थी। बुर्राक को थोड़ी परेशानी हुई। क्या आपको ये मासूम आदमी नहीं पसंद? उसने मिन्हा की तरफ देखा। ऐसी बात नहीं है बुर्राक, मैं बस इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, मगर शादी बहुत बड़ा फैसला है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। उसने आराम से बोला था। बिल्कुल, और वक्त लेना भी चाहिए, ये आपका हक है, मगर ये अंगूठी रख लें। उसने अब उठकर अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई थी। अगर फैसला मेरे हक में हुआ तो ये अंगूठी पहन लीजिएगा। आप जिस दिन ये अंगूठी पहनेंगी उस दिन मैं समझूंगा कि मेरी मोहब्बत जीत गई। उसने बड़े प्यार से कहा था। मिन्हा ने ना चाहते हुए भी अंगूठी की डब्बी पकड़ी। मैं जानता हूँ कि अब हम दोनों की सिचुएशन काफ़ी अजीब हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक आप कोई फैसला नहीं कर लेती सब पहले जैसा रहे। मैं आपको खोना नहीं चाहता। बुर्राक को इतना तो पता था अब वो पहले की तरह नहीं रह सकते। मैं भी यही चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, बस हम पहले की तरह हालात में एक दूसरे के साथ रहें। तुम मुझे बहुत अजीज हो बुराक। ये सुनकर बुराक को दिल से खुशी हुई थी। अब घर चलें। बुराक ने वक्त देखा था, रात काफ़ी हो चुकी थी। नहीं जी, पहले हम आइसक्रीम खाएंगे। मिन्हा और लेट नाइट आइसक्रीम न खाए, ऐसा कैसे हो सकता था? जो हुक्म आपका मैडम जी, उसने बड़े लाड से कहा था। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। तेज हवा चल रही थी और मालगिरा की पहाड़ों में हर तरफ हरियाली उस मंजर को और खूबसूरत बना रही थी। मिन्हा ने अपना मोबाइल निकाला और गाड़ी के सामने वाले शीशे के साथ टेक लगा कर रखा। वो इस खूबसूरत नज़ारे की वीडियो बनाना चाहती थी। रोड बिल्कुल सुनसान था। तभी सामने रोड के बीच में एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी।
उसके साथ ही 4 गुंडे नुमा लोग खड़े थे। वो उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। बुराक ने गाड़ी रोकी। मिन्हा ने बुराक की तरफ देखा और बुराक ने मिन्हा की तरफ। ये जरूर शाहनवाज के बंदे हैं। मिन्हा को समझ लग चुकी थी। आप कितने लोगों को संभाल सकती हैं? बुराक ने सीधा सवाल किया था। 2 आदमी तो आराम से, मिन्हा ने जवाब दिया। आप उस मोटे वाले को संभालें, मैं बाकी 3 को देखता हूँ। इतना कहकर वो नीचे उतरा था। मिन्हा ने शुक्र अदा किया था कि उसने लहंगा उतार दिया था। वो भी गाड़ी से बाहर उतरी। वो चारों हाथ में डंडे लेकर खड़े थे। मिन्हा और बुराक एक साथ आगे बढ़े थे। उन चारों ने मिन्हा और बुराक की तरफ रुख किया। मिन्हा ने अपने बालों को भागते हुए बांधा था। पास पहुंचकर उसने उस मोटे आदमी के पेट पर अपना सर मारा था। मिन्हा ने सबसे नाजुक जगह वार किया था। वो मोटा आदमी अपना पेट पकड़कर बैठा हुआ था। फिर मिन्हा ने उसकी कमर में मुक्का मारा। बुराक ने बाकी 3 को अपनी तरफ आने का इशारा किया था। वो तीनों जंगलियों की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक ने बुराक के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की थी, दूसरे ने उसकी टांगे पकड़ने की कोशिश की। बुराक ने अपना मुंह नीचे करके अपनी टांगे हवा में उछाली थी। मुक्का उस आदमी के अपने ही मुंह पर आकर लगा था। बुराक ने अपनी टांग खींचकर एक आदमी को मारी। वो थोड़ी दूर जाकर गिरा। फिर बुराक ने एक आदमी के हाथ से डंडा खींचा। मिन्हा उस मोटे का सर पास वाली पहाड़ी में मार चुकी थी। उसका सर खून से भरा हुआ था। मिन्हा ने उसका डंडा पकड़ा। जिस आदमी को बुराक ने टांग मारी थी वो अब तक नीचे गिरा पड़ा था। बुराक ने डंडा एक आदमी के सर पर मारा तो उसने अपना सर पकड़ लिया। बुराक उसे जमीन पर लेटाकर उसे मार रहा था। अचानक उसके पीछे एक और गुंडा चलता हुआ दिखाई दिया। बुराक को अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसके पीछे है। मिन्हा ये देखकर भागी थी। उसने पीछे से उस आदमी के सर में डंडा मारा था। बुराक जो पागलों की तरह दूसरे आदमी को मार रहा था उसने पीछे मुड़कर देखा। फिर मिन्हा को देखकर मुस्कुराया। वो दोनों उन सब की हालत बुरी कर चुके थे। क्या कमाल कर लड़ती हैं आप? मिन्हा की तारीफ किए बिना वो रह नहीं सकता था। तुम भी कोई कम जुनून में नहीं लड़ते। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। बुर्राक को कुछ महसूस हुआ। जिस आदमी को उसने लात मारी थी वो उनसे थोड़ी दूर पिस्तौल लिए खड़ा था। उसने मिन्हा का निशाना लेकर पिस्तौल चलाई। बुर्राक ने मिन्हा को साइड पर धक्का दिया था और खुद उसकी जगह पर आया। गोली बुर्राक को लगी थी। उसने कहा था कि मिन्हा को नुकसान पहुंचाने वाला हर शख्स पहले उससे टकराएगा, और उसने ये साबित करके दिखाया था। जितना अचानक ये सब हुआ था, मिन्हा अभी तक शौक में थी। दूर से पुलिस का सायरन बजा। वो आदमी पिस्तौल फेंक कर वहां से फरार हुआ। मिन्हा बुर्राक की तरफ भागी। बुर्राक, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम चलो गाड़ी में बैठो, हम अस्पताल जाएंगे। वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। बुर्राक रोड पर नीम बेहोश पड़ा था। कुछ लम्हों में ही उसका काफी खून रोड पर फैल चुका था। पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी थी। उन तीनों गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब वो बुर्राक को अस्पताल लेकर जा रहे थे। बुर्राक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। उससे बाजू पर गोली छूकर गुजरी थी, लेकिन खुद ज्यादा बह जाने की वजह से थोड़ी कमजोरी हो गई थी। मिन्हा बाहर डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां लेने गई थी। बुर्राक का फोन बजा था। उसके एक हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। खुद को संभालते हुए उसने फोन उठाया। किधर हो बुर्राक? इतने दिन हो गए तुम गोदाम नहीं आए। लायला उसे मिस कर रही थी। अभी तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हूँ, वो नॉर्मल से अंदाज में बोला था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्यों नहीं बताया? कब से हो उधर और कौन से अस्पताल में हो? लायला ने एक साथ फिक्रमंदी के आलम में बहुत से सवाल कर डाले थे। तुम्हें तो सवाल पसंद नहीं और आज इतने सवाल। वो उसे चिढ़ा रहा था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, जल्दी बताओ क्या हुआ है। वो इस वक्त मजाक के मूड में नहीं थी। 2 दिन बाद गोदाम आऊंगा, फिर बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। वो लायला के साथ अब सब शेयर करने लगा था। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तुम मुझे अस्पताल का एड्रेस दो, मैं अभी आ रही हूँ। वो बुर्राक को देखे बिना नहीं रह सकती थी। मोहतशिम तुम्हें नहीं आने देगा, और वैसे भी इतनी रात को आने की जरूरत नहीं है। वो सर उल्टा उसके लिए फिक्रमंद हुआ था। मोहतशिम को मैं संभाल लूंगी, तो मुझे एड्रेस भेजो, वरना तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। वो जिद की पक्की थी। अच्छा अच्छा, भेज रहा हूँ, मगर यहाँ पर मिन्हा भी है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। उसे खतरा लाहक हुआ था। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो उसके सामने आऊंगी। तुम बस एड्रेस भेजो, वो तब कर बोली थी। बुराक ने फोन बंद करके एड्रेस भेजा। लायला ने बड़ी सी काली चादर अपनी गिर्द लपेटी और नीचे की तरफ भागी। सब सो चुके थे। गोदाम का दरवाजा उस वक्त खुलते ही सब जग जाते। उसने तहखाने का रुख किया। वो इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकलने वाली थी। 1 घंटे बाद लायला सुल्तान बुर्राक के मुकाबिल बैठी थी। बुर्राक उसे सब कहानी बता चुका था कि कैसे उसे गोली लगी थी। शाहनवाज मेरे हाथों नहीं बचेगा, लायला गुस्से से बोली थी। अभी जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। बुर्राक ने उसे समझाया था। हम उनकी ही चाल उनके खिलाफ चलेंगे। बुर्राक ने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ बोला। उसके दिमाग में जो प्लान आया था वो मिन्हा को पहले ही बता चुका था। मिन्हा उसी की तैयारी के लिए बाहर गई थी। अब वो सारा प्लान लायला को बताने वाला था। मगर कैसे?
लैला को समझ नहीं आई थी। तो प्लान ये है कि उसे तफसील से लायला को बताया था। लायला को प्लान पसंद आया था। लायला सुल्तान तुम्हारे साथ है बुराखा शाम? लायला ने उसे देखते हुए बोला। फिर चंद लम्हों बाद वो बाहर निकली और दूसरी तरफ से मिन्हा आती दिखाई दी। मिन्हा ने लायला का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन बुर्राक के कमरे से एक लड़की को निकलते देखकर वो हैरान हुई थी। मिन्हा जल्दी से अंदर कमरे की तरफ लपकी। ये लड़की कौन है? अंदर आते साथ उससे पहला सवाल किया था। वो जो लेटा सेब खा रहा था एक पल के लिए रुका। वो दरअसल वो उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ऐसी भी कौन थी? मिन्हा को हैरत हुई। पता नहीं, कोई अनजान लड़की थी, अपने शोहर को तलाश करते हुए गलती से इस कमरे में आ गई थी। उसे यही सूझा था। मिन्हा का शक दूर हुआ था। सब अच्छे से हो गया? बुर्राक ने बात बदली। हाँ, सब अच्छा हो गया। मिन्हा ने उसे तसल्ली दी थी। लायला सुल्तान एक वीरान गली में दाखिल हो रही थी। उसके कान में बुर्राक के लफ्ज गूंज रहे थे। गाड़ी में पड़े मोबाइल में जो वीडियो बनी थी वो हमारी बहुत मदद करेगी। हम विक्टिम गेम खेलेंगे। मिन्हा उस वीडियो में से सिर्फ वो वाला हिस्सा क्रॉप करेगी जिसमें मुझे गोली लगी थी, और फिर मिन्हा एक छोटा सा बयान सोशल मीडिया पर छोड़ेगी। कुछ लम्हों पहले मिन्हा गाड़ी में बैठी थी। मोबाइल उसने डैशबोर्ड पर सेट किया, फिर वो बोलना शुरू हुई। इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। बुर्राक को गोली लगने वाली वीडियो साथ चलाई गई थी। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का क्या हाल किया जाता है। क्या हक का साथ देना जुर्म है? क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जिधर जालिम यूं खुलेआम फिरता है और उसे पूछने वाला कोई नहीं? जिस मुल्क में इंसाफ मिलना मुमकिन ना हो, उस मुल्क के हालात कैसे बदलेंगे? यहाँ हर शख्स पैसे का पुजारी है। हर एक के ज़मीर को यहाँ खरीद लिया जाता है। और फिर अगर हम जैसे लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करें तो हम पर कातलाना हमले करवा दिए जाते हैं। वो बस बोलती जा रही थी और पूरा मुल्क उसे सुन रहा था। सबके दिल में इस वक्त मिन्हा के लिए हमदर्दी थी। हमदर्दी? हमें लोगों की हमदर्दी हासिल करनी है। लोगों को हमारा दर्द महसूस होना चाहिए, जैसे हम पर जुल्म के पहाड़ टूटे हैं। हमारी आवाम बहुत हसास और जुनूनी है, बस बात उनके दिल को लगनी चाहिए। वो एक लम्हा खामोश होकर फिर बोलने लगी थी। मुझे कितने ही लोगों ने धमकाया, बहुत से पैसे का लालच दिया। मेरे अपने बहुत से करीबी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि मैं मखलूक से नहीं उनके खालिक से डरती हूँ। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब का फ़र्ज़ है। उस दिन गाड़ी के नीचे आकर किसी की बहन बेटी मरी है, तो कल को उसकी जगह आपकी बहन बेटी भी हो सकती है। क्या गरीब का खून इतना सस्ता है? मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क में हादी जैसे और लोगों को जन्म न लेने दें। जब तक हादी शाह को सज़ा नहीं मिल जाती, आप सब में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। मेरे साथ आएं, सड़कों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अपना हक इस्तेमाल करें। हम में से कोई अपने घरों को नहीं जाएगा जब तक उस औरत को इंसाफ नहीं मिल जाता। उसने वीडियो बंद की थी। फिर कुछ बड़े बड़े सोशल मीडिया पेजेस को ये वीडियो फॉरवर्ड की और कुछ ही लम्हों में ये वीडियो पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। आवाम जो 2 दिन बोलकर खामोश हो गई थी, वो फिर अब से जोश में आ चुकी थी। आवाम को सड़कों पर लाना सिर्फ एक मोहरा है। जो अदालतें हादी के मामले में खामोश थीं, उन्हें आवाम के आगे झुकना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, उससे ज़्यादा कोई भी अदालत खामोश नहीं रहेगी। मुल्क में अमन कायम करने के लिए उन्हें हादी शाह को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। लाला सुल्तान 3-4 लोगों से मिलकर गोदाम में वापस आ चुकी थी। वो उन सबको उनका काम समझाई थी। सुबह का वक्त था जब सब लोग हाथों में मुख्तलिफ बैनर्स उठाए इस्लामाबाद की सड़कों पर निकले थे। ऐसे लगता था जैसे पूरा इस्लामाबाद बाहर आ गया हो। सब लोग बस इंसाफ चाहते थे। पुलिस की लाठी चार्ज का भी कोई असर नहीं हुआ था। किसी भी मुल्क की असल ताकत उसकी आवाम होती है। उन्होंने उसी ताकत का इस्तेमाल किया था। लोगों ने कोर्ट के बाहर धरना दिया था। उनमें से कोई भी वापस जाने को तैयार न था। न जाने कहाँ से लोगों में इतनी हिम्मत आ गई थी। टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही सवाल था कि क्या हमारे मुल्क में किसी को इंसाफ मिलेगा। इस केस को इतना उछाला गया था कि ऐसा लगता था कि मुल्क में कोई और काम की खबर है ही नहीं। दूसरी तरफ शाहनवाज अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। बाजी उसके हाथ से निकल चुकी थी। उसकी भलाई इसी में थी कि वह अपने बेटे पर मुकदमा चलने दे। पुलिस, अदालत, कोई भी आवाम को नहीं रोक पा रहा था। 2 दिन बाद बुर्राक को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो और मिन्हा सीधा धरने वाली जगह गए थे। वहां लोगों का रश देखकर मिन्हा मुस्कुराई थी। हमारा प्लान कामयाब रहा। एक सोशल मीडिया पैगाम की वजह से हजारों लोग धरना दिए आ गए हैं। मिन्हा काफी मुतमईन थी। पुलिस और अदालत बस हार मानने ही वाली थी। आपको वाकई लगता है कि लोग यहाँ हक का साथ देने आए हैं? बुर्राक ने उसे हकीकत का आईना दिखाया था। तभी मिन्हा ने सामने एक लड़की को देखा। वो उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने लाल रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा था, आंखों पर चश्मे लगा रखे थे। मिन्हा ने देखा कि उसने अपने बड़े से बैग में नोटों की गठियां निकालकर एक आदमी को दी थी
और फिर वो आदमी सारे पैसे लेकर लोगों में तकसीम करने लगा। बुर्राक हल्का सा मुस्कुराया था। अवाम का जोश सिर्फ एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लालच कभी ख़त्म नहीं होता। पैसे के लिए तो लोग कत्ल तक कर सकते हैं, ये तो फिर 2 से 3 दिन सड़क पर बैठने की बात है। यहाँ सबका ज़मीर मर चुका है, सब पैसे के पुजारी हैं। मिन्हा के पैगाम की वजह से सिर्फ चंद सौ लोग ही आएंगे और अगले दिन वो भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हमें इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग चाहिए और वो तुम करोगी लायला सुल्तान। तुम्हारे बहुत से जानने वाले हैं जो लोगों में बेहद मकबूल हैं। अब आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानती हो। मिन्हा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उस लड़की की तरफ भागी। वो एक छोटी सी गली की तरफ बढ़ रही थी। कौन हो तुम, और तुम क्यों हमेशा मेरी मदद के लिए आती हो? मिन्हा ने पहचान लिया था, ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की थी। मैं जो कोई भी हूँ शायद तुम कभी ना जान पाओ, और जहाँ तक बात है तुम्हारी मदद की, उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। पता नहीं किस्मत क्यों मुझे और तुम्हें हमेशा आमने सामने ले आती है। वो बिना मुने बोली थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। वाकई गरीब हो या अमीर, सबके लिए पैसा बस अहम है। उसने तंज किया था। ज़रूरत नहीं इसकी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हुई थी। लायल अपने कमरे में खड़ी अलमारी में कुछ देख रही थी। क्या करती फिर रही हो पिछले 2 दिनों से? शीला उसे देखकर बोली थी। हक और सच का साथ दे रही हूँ, वो नॉर्मल से लहजे में बोली। और ये तुम्हारे आधे पैसे कहाँ गए? शीला ने उसकी अलमारी में देखा। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह अपना पैसा उस धरने में बहाया है, वो मुतमईन थी। पागल हो तुम लायला सुल्तान। हाय अल्लाह, मुझे दे देती अगर पैसे नहीं संभाले जा रहे थे तो। शीला को अफसोस हुआ था। लायला ने सिर्फ बुर्राक के लिए पैसा पानी की तरह बहाया था, वरना उससे भी पैसा बहुत अजीज था। मीना अपने कमरे में बैठी थी। उससे अभी अभी हादी की गिरफ्तारी की खबर मिली। उस मुलाजिम ने भी हादी के खिलाफ गवाही दे दी थी। अब बस हादी को सज़ा मिलने ही वाली थी। मिन्हा बे इंतहा खुश थी। चाहे जैसे भी हो, वो केस हल कर चुकी थी। उसका फ़ोन बजा। वो इस कॉल के लिए मेंटली तौर पर तैयार थी। यस सर, उसने अदब से बोला। मिन्हा, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मगर मुल्क में ये फसाद फैलाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आपने अपनी जॉब के कवानीन के खिलाफ जाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। भारी आवाज़ में वो ऑफिसर बोला था। मिन्हा खामोश रही। इसी बुनियाद पर आपको 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप अपना इंस्पेक्टर कार्ड कल ऑफिस आकर वापस कर दें। इतना कहकर फ़ोन बंद हो चुका था। आज वो इंस्पेक्टर मिन्हा से सिर्फ मिन्हा रह गई थी। वो हार के भी जीत गई थी, या जीत कर भी हार गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो मुतमईन थी, कम से कम उसने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया था। शाजिल, वो लड़का अपनी जमानत के बाद किधर किधर गया था, मुझे रिपोर्ट चाहिए। हुमायूं अपने कमरे में बैठा था। वही बुर्राक हशाम जो मेरे तबादले से पहले रिहा हुआ था। उसने हवलदार को याद करवाया था। फिर उसने फ़ोन बंद किया। अगर मिन्हा मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा बुर्राक हशाम। देखते हैं तुम्हारा सच जानने के बाद मिन्हा कैसे तुम्हारा भरोसा करेगी। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला था।